Okay, so it's 10:05, and I think we should start. We are going to be a cohort of 15 people, but I see seven have already joined, and so we can start the workshop. And then later on, whoever else wants to join in, वो बीच में हमें join कर लेगा, and then फिर हम उनको एक छोटा सा recap दे देंगे. So, welcome everyone. Hello and assalamu alaikum. Welcome to this workshop on workflow automation for educators. Thank you so much for joining us on this fine Sunday morning. And as usual, मेरा पहला सवाल होगा आप सब लोगों से, why are we here? Why are we joining in today? आप लोगों के क्या टॉप रीजंस हैं? आई हैव लिस्टेड अ फ्यू फ्रॉम द गूगल फॉर्म जो आप लोगों ने सबमिट किए थे कि व्हाट एग्जैक्टली यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वर्कशॉप, जिसमें यू आर लुकिंग टू मेक योर टास्क्स द वंस आर वेरी रेपिटेटिव टू बी वेरी एफिशिएंट. आप चाह रहे हैं कि करिकुलम में, टाइम टेबल्स में, स्केजुलिंग में, मीटिंग रिमाइंडर्स में एक्सेट्रा में ऑटोमेशन आपको अचीव हो. सम ऑफ यू आर लुकिंग फॉर अ लिटिल ऑटोमेशन इन असेसमेंट वर्क, असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, फीडबैक भेजना, फीडबैक की समरीज रिसीव करना, रिपोर्ट्स भेजना, to do some data analysis and augmentation of all apps in one platform. Anybody who'd like to unmute themselves and share what exactly is your key motive of joining today and what exactly are you wanting to learn from today's workshop? And then we're going to proceed forward. अस्सलाम वालेकुम मुनी. हाउ आर यू? Welcome. अच्छा, मेरा ऑब्जेक्टिव ना बिल्कुल एक ओपन माइंडेड लर्नर की तरीके से आया हूँ कि एक जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोमेशन को लर्न करूँ यूजिंग एआई, और फिर आई विल सी कि हाउ आई कैन एक्सप्लोर देम इन माय वेरियस जो डेली टास्क हैं, चाहे वो शेड्यूलिंग से रिलेटेड है और असेसमेंट से रिलेटेड है, उनमें मुझे ये हेल्प हो सके. तो जस्ट टू बी ऑन उसके ऊपर देखना. I believe that is the best approach. One should join with an open mind and then फिर go from there. जो भी हम सीखते हैं उसको फिर हम देखेंगे किस तरह से अप्लाई करना है. So प्रॉब्लम क्या है? हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं? You saw the reasons for us joining, but what is the main problem that has led us to this point? और वो है कि we have less time and we have a lot of work. Being an educator, we have to deal with not only our educational responsibilities of teaching our students, mentoring our students, but also to deal with a lot of administrative work. हमें ईमेल्स करनी होती हैं, हमें रिमाइंडर्स भेजने होते हैं, हमें चीज़ें स्केड्यूल करनी होते हैं. इफ़ यू हैव एन एडमिनिस्ट्रेटिव रोल इन एडिशन टू योर टीचिंग रोल, तो फिर तो आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है. वी हैव सम एडमिनिस्ट्रेटर्स विद अस, डॉक्टर सबाज विद अस एंड अदर्स हु आर हेडिंग आवर डिपार्टमेंट्स. उन लोगों को पता होगा कि किस तरह टू डील विद all of the administrative work which is often very repetitive, which is very cumbersome. तो उसको हम किस तरह ऑटोमेट कर सकते हैं, ज़्यादा efficient बना सकते हैं, so that less of our time is required in attempting to complete that work, and most of it is completed efficiently and successfully. Solution क्या है इस problem का? How do we automate it? We basically are going to automate it by coding, and we do not necessarily need to be a software engineer to do this coding. This coding will be of vibe coding. हम basically हम prompt करेंगे एक AI model को. It is going to write a piece of code for us, a code snippet. We are going to paste that snippet into the Google Apps script, and then we're going to see how that code leads to an automation of particular tasks. Best time to ask and to share your point of view. ये वाइब कोडिंग क्या होती है, तो थोड़ा सा बता देंगे. Okay, so coding basically क्या होती है? Code क्या होता है? This is a language in which computers talk to each other, have a conversation between different devices, different computers, different applications. वो जो आपस में बात करती हैं, वो they do it in the form of code. जैसे we use English or any other language for communication, जो different applications होती हैं in our computer, they converse with each other using code. उसकी बहुत सारी formats होती हैं. There's HTML, there's CSS, there's Java, there is Python, there is React. But हम आज जो है ना basic GS कोड के बारे में बात करेंगे, यानी जावास्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे, जो कि गूगल ऐप स्क्रिप्ट में इस्तेमाल होता है. कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कोडिंग हम नहीं सीखेंगे. हम ये नहीं सीखेंगे लाइन बाय लाइन हमने कोड कैसे लिखना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है. ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड टुडे इसके किस तरह हमने एक एआई मॉडल को प्रॉम्प्ट करना है टू राइट अ पीस ऑफ कोड फॉर अस, एंड वेयर एग्जैक्टली वी हैव टू पेस्ट दैट कोड सो दैट आवर डिजायर्ड ऑटोमेशन इज अचीव्ड. सो जैसे कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि हम आज कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बनने वाले. वी जस्ट गोइंग टू लर्न to become efficient managers of our work and to introduce some automation in our daily tasks, and we are going to use coding to leverage that.
ठीक है। सो आपने कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट करना है, अपना यूज केस आइडेंटिफाई करना है, यू विल अचीव अ कोड, वी आर गोइंग टू पेस्ट इट एट अ रिलेवेंट स्पॉट, जो कि हम पूरा पीस बाय पीस, स्टेप बाय स्टेप आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, एंड देन वी गोइंग टू अचीव व्हाट वी वांट। So basically हम Google Sheets इस्तेमाल करेंगे। So all of you must have a Google account. I believe everybody does have one. तो बस कोशिश करें लॉगिन रखें उसको अपने पास अपने लैपटॉप के अंदर। We are going to use Google App Script, जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा hands on प्रैक्टिस के दौरान। And then we're going to use any AI model, चाहे आप चैट GPT इस्तेमाल कर लें, चाहे आप Gemini इस्तेमाल कर लें, और any AI model that you're using, चाहे वो Grok हो या Claude का Opus हो, any मॉडल दैट यू वांट। मैं यहाँ पे जेमिनाई के थ्रू डेमोस्ट्रेट करूंगा। इफ़ यू वांट कि मैं चैट जीपीटी भी इस्तेमाल कर दिखाऊं तो मैं वो भी आप लोगों को डेमोस्ट्रेशन में दिखा दूंगा। इट्स गोइंग टू बी बेसिकली द सेम। हमने करना क्या है कि उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल को सिर्फ एक कोड जनरेट करना। ठीक है। सो आज जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा वो एक पर्टिकुलर स्किल होगा पापा काम रिगार्डिंग। कर रहे हैं ना। ब- जी। तो आज बेसिकली जो होगा मैं एक स्किल आप लोगों से शेयर करूंगा, कुछ टिप्स होंगी रिगार्डिंग हाउ टू जनरेट दैट कोड एंड हाउ टू यूज इट टू इम्प्लीमेंट इट एंड अचीव दैट ऑटोमेशन। लेकिन यूज केसेस जो होंगे आपके इंडिविजुअल, आपने खुद आइडेंटिफाई करने हैं। उस स्किल को इन प्रैक्टिस कैसे लाना है, और उस टेक्निक को जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसको इस्तेमाल करते हुए आपने अपने इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक टास्क को कैसे ऑटोमेट करना है, दैट इज समथिंग यू गोइंग टू हैव टू डिसाइड ऑन योरसेल्फ। आई एम ओनली गोइंग टू बी गिविंग Assalamualaikum, यू द sir. विंग्स, यू हैव टू डिसाइड वेयर यू हैव टू फ्लाई ऑफ टू। आई सी हैंड। जी डॉक्टर रिजवाना बोले। Sir, you are too fast in speaking like me, but when I am a listener or a learner, then I feel this pace is not. I thought I am catching up. Please be slower. श्योर, बिल्कुल, आई विल ट्राई टू स्लो डाउन अ लिटिल। और अभी तक हमने कोई हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं की है, ये जस्ट एक ब्रीफ डिस्कशन इंट्रोडक्शन की। यू नॉट मिसिंग आउट ऑन मच। अभी जब हम स्टेप बाय स्टेप उसकी डेमोस्ट्रेशन देखेंगे तो आई एम गोइंग टू बी वेरी मेथोडिकल एंड आई एम गोइंग टू बी वेरी स्लो एंड स्पेसिफिक विद दैट। तो डोंट वरी, आप कुछ मिस नहीं करेंगे। अगर कुछ मिस करेंगे तो हम उसको बार बार रिपीट भी करेंगे, उसको प्रैक्टिस भी करेंगे। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपना फर्स्ट यूज केस के ऊपर ऑटोमेशन प्रैक्टिस करनी है, जो कि सिंपल सा यूज केस है कि हम सब लोगों को मीटिंग स्केड्यूल करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू send out meeting invites for a curriculum review meeting, for any faculty meeting, whether it's departmental or interdepartmental, हमने simply emails भेजनी होती हैं। and email sending is a task which is very repetitive। आप हर इंडिविजुअल को ईमेल भेजें, उसको कस्टमाइज करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो नाउ वी गोइंग टू लर्न टुडे कि किस तरह हमारे सिंपल बेसिक टास्क ऑफ राइटिंग एंड सेंडिंग ईमेल्स कैन बी ऑटोमेटेड टू बी मोर एफिशिएंट एंड फास्टर। एंड उसके ऊपर वी गोइंग टू कीप ऑन एडिंग लेयर्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी, और उसको हम और कॉम्प्लेक्स एंड और ऑटोमेटेड बनाते जाएंगे। So first of all, what I want you to do is simply go on to your browser and open Google Sheets. I'm going to share my screen as well and do it in front of you so that आप उसको देखते जाएं और मुझे फॉलो करते जाएं। Okay, so you see my computer screen in front of you. I'm simply going to type in गूगल शीट्स इन माई ब्राउज़र। मैं यहाँ पे सफारी ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ इन माई मैक। आप लोग अगर विंडोज़ कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं तो आप अपना गूगल क्रोम खोल सकते हैं, फायरफॉक्स खोल सकते हैं, एंड इन द सर्च बार यू जस्ट हैव टू टाइप गूगल शीट्स। ठीक है। एंड वंस यू टाइप दैट, आपको इस तरह से रिजल्ट्स अपेयर होंगे। एंड जो पहला रिजल्ट है गूगल शीट्स का, यू जस्ट हैव टू ओपन इट। एंड इफ़ you're लॉग्ड इन टू एनी गूगल अकाउंट तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। इफ़ you're नॉट लॉग्ड इन तो वो आपसे कहेगा किसी भी अकाउंट में लॉग इन करने के लिए, एंड देन आपने सिर्फ एक ब्लैंक स्प्रेडशीट ओपन करनी है। ठीक है। आई एम गोइंग टू गिव यू मिनट टू कंप्लीट दिस टास्क। अपने ब्राउज़र में जाना है, डायलॉग बॉक्स के अंदर लिखना है गूगल शीट्स, एंड देन व्हेन यू ओपन इट एक ब्लैंक वर्कशीट ओपन कर लेनी है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह है, इट्स जस्ट द गूगल वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एंड वंस you're डन एंड वंस यू ओपन योर वर्कशीट, सिर्फ एक हाथ रेस करते हैं या थम्स अप बनाते हैं या यस लिखते हैं इन योर चैट और से डन, एंड देन वी गोइंग टू प्रोसीड फॉरवर्ड। Okay, so Dr. Samara is done, Dr. Nuri Kiran is done. Okay, so I see Dr. Hira is done, waiting for the others to catch up. Okay, so Dr. Sabha Sohail is done, wonderful, excellent. ठीक है। एंड अब आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन के ऊपर उस शीट के अंदर कुछ कॉलम्स हैं, A, B, C एंड रोज 1 2 3 हैं। ठीक है। सो A1 जो कॉलम है उसके अंदर आपने टाइप इन करना है
नेम। ठीक है, आई ऑल्सो हैव अ शीट प्रिपेयर्ड, अगर आप चाहें तो ये भी देख सकते हैं, लेकिन ऑल आई वांट इसके आप कॉलम ए में लिखें फैकल्टी नेम, बी में लिखें ईमेल एड्रेस, एंड सी में लिखें डिपार्टमेंट। दैट इज ऑल आई वांट यू टू डू। ठीक है, फैकल्टी नेम, email address, then department. That's all I want you to do. Simple सा task है। And while you're doing it, I'm just going to fill it up with make-believe data. We can start with our participants, Dr. Samara. We can write Dr. Noor and Dr. Shiraz. ठीक है? And if you would be kind enough to just drop your email addresses in the chat, Dr. Samara, Dr. Noori Kiran, Dr. Shiraz, अगर आप अपने email addresses लिख दें तो मैं यहाँ पे आपकी email addresses enter कर देता हूँ। Thank you so much, Dr. Noori Kiran. Okay, so we have Dr. Noori Kiran's address. We have Dr. Samara's address. And then we have Dr. Shiraz's address with us. And आप लोग के departments भी लिख देते हैं यहाँ पे. We're going to write medical education. I'm going to write basic science. I know you're an education, Dr. Noori Kiran, बस मैं variety के लिए different departments add करूँ. And I'm going to add surgery here. ठीक है, अब आप लोगों ने एक शीट प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है, जिसमें 3 नाम हैं, 3 ईमेल एड्रेसेस हैं। नूरी किरण का एड्रेस शायद ठीक से ऐड नहीं हुआ है। ओके, सो 3 नाम हैं एंड 3 एड्रेसेस हैं। दिस लिस्ट डज नॉट हैव टू बी एग्जॉस्टिव। इसके अंदर आप 100 एड्रेसेस भी ऐड कर सकते हैं, 1000 भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इट डजंट रियली मैटर। और सिर्फ एक भी एड्रेस ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ईमेल्स यू हैव टू सेंड आउट एंड हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव टू सेंड आउट। तो सबसे पहले बेसिक सिंपल टास्क परफॉर्म करेंगे हम एक ईमेल भेजने का, एंड देन वी आर गोइंग टू ऐड ऑन मोर लेयर्स ऑफ कम्प्लेक्सिटी टू मेक इट मोर ऑटोमेटेड एंड मोर एफिशिएंट। ठीक है, नाउ दैट यू प्रिपेयर्ड दिस शीट, आपने जाना है किसी भी अपने एआई मॉडल के अंदर, ठीक है, आप चाहें तो चैट जीपीटी ओपन कर सकते हैं, आप चाहें तो जेमिनाई ओपन कर सकते हैं, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपने एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है, या इट डजंट इवन हैव टू बी अ स्पेशलाइज्ड प्रॉम्प्ट, आप सिंपली जाकर उससे जो प्रॉम्प्ट मैं टाइप इन कर रहा हूँ आप वो लिख दें। मुनीफ, ये जो आप स्क्रिप्ट आप टाइप करेंगे ना, ये उसमें भी अगर डाल दें साथ में चैट के अंदर, जी मैं तो बिल्कुल डाल वी हम इसको ना अपने पास नोट कीपिंग के तौर पे भी सेव रखेंगे। That would be- दूँ। वंस ताकि आई एम डन टाइप ताकि कॉपी चैट हम कर। आखिरी में सेव कर लेना, तो हमारे लिए एक रिव्यू नोट शीट बन जाएगी। थैंक यू। Absolutely, I'll do that for you. Okay, so basically simple सी prompt लिख रहा हूँ कि write code for Google App Script to help me automate my email sending task to invite faculty for a meeting, curriculum meeting। ठीक, आप चाहें तो सिर्फ जो आपने शीट बनाई है उसका स्क्रीनशॉट लेकर भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चाहें तो उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कॉलम्स क्या हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ उसे कॉपी कर रहा हूँ एंड यहाँ पे उसे, ठीक है, ओके।
सो हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट लिखी है, इट कैन बी मोर डिटेल्ड इफ़ यू वांट। मैं यहाँ पे कैनवस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और मॉडल में मैं यहाँ पे प्रो इस्तेमाल कर रहा हूँ, सो दैट अ नाइस कोड इज रिटन फॉर अस। ठीक है, एंड देन दैट्स ऑल। मैं सिर्फ उसे रन कर रहा हूँ, एंड सून वी आर गोइंग टू हैव अ कोड। सो आप देख सकते हैं कि इट हैज रिटन अ कोड फॉर अस। और अब मैं जाकर इस कोड को कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंड देन वी गोइंग बैक टू आवर गूगल शीट। ठीक है, हम गूगल शीट में वापस आ गए हैं। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एक्सटेंशन। यहाँ देखेंगे आप जो मुनीर, ये फॉर्मेट। पूरा जो आपने स्क्रिप्ट डाली थी ये चैट में डाल देंगे प्लीज? जी सर, मैं अभी डाल देता हूँ। ठीक है, ओके, आई विल कॉपी इट। पूरी स्क्रिप्ट डाल दूँ या सिर्फ अपनी प्रॉम्प्ट डालूँ सर? मैं पूरी स्क्रिप्ट डाल देता हूँ। पूरी स्क्रिप्ट डाल दें ताकि वो हम ना बिल्कुल सेम टास्क को ना वो रन करते रहेंगे साथ साथ। थैंक यू। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैंने यहाँ पे वो स्क्रिप्ट चैट में ऐड कर दी है। सर ये स्क्रिप्ट थोड़ी लंबी है, एंड जो 1000 कैरेक्टर लिमिट नहीं होती नहीं है नहीं, chat, आप वो अपनी से प्रॉम्प्ट को डाल दें, कंप्लीट प्रॉम्प्ट जो आपने टाइप किया था ना वो डाल दें। मैं प्रॉम्प्ट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सर दूसरा, आई स्किप दैट पार्ट कि आपने जब गूगल शीट से कॉपी पेस्ट किया था एंड देन यू इरेज्ड इट एंड देन रोट इट मैनुअली, तो उसको हाँ हमने कुछ मैनुअली लिखना है कि नहीं, कॉपी पेस्ट करना है? आप चाहें तो कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन क्योंकि छोटा सा था, तीन ही तो कॉलम से, तो फिर मैंने मैनुअली टाइप इन कर दिया उसे फॉर्मेट वी करने के जस्ट हैव टू टाइप इन मैनुअली और ऐड द ईमेल एड्रेसेस आल्सो। मैडम आप चाहें तो मैनुअली ऐड कर सकते हैं, चाहें तो पेस्ट कर सकती हैं। क्योंकि थोड़ा सा था तो मैंने उसको सिर्फ मैन्युअली लिखा है। प्रॉम्प्ट में ईमेल एड्रेस डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी शीट के अंदर होगा। वो वहां से उसे ठीक है। कर लेगा, माइग्रेट हो जाएंगे वहां से। ठीक है, सो अब जो हमारे पास ये कोड आया है, मैंने इसको कॉपी किया है, एंड मैं वापस गूगल शीट्स में आ गया हूँ। ठीक है, एंड गूगल शीट्स में आप देखेंगे यहाँ पे ऊपर एक बार है कंप्लीट, और जिसके अंदर एक बटन है एक्सटेंशंस के नाम से। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन एक्सटेंशंस, आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन ऐप स्क्रिप्ट, और हमारे पास गूगल ऐप स्क्रिप्ट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वंस वे हेयर मैं इसको कंट्रोल ए प्रेस के एम्प्टी कर रहा हूँ, एंड जो मैंने कोड कॉपी किया था अपने जेमिनाई से, वो कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आई होप यूर ऑल फॉलोइंग अलोंग। हम रिपीट भी कर लेंगे इसे, इफ इन केस एनीबडी इज। यस, हम चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मैडम, क्योंकि मल्टी मॉडल है ना आजकल एआई सारे मॉडल्स, चाहे वो चैट जीपीटी हो या जेमिनी है, तो अगर हम सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके भी उसमें पेस्ट कर देंगे तो गोइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे कॉलम्स क्या है। ठीक है, सो अब मैंने वो स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एंड ऑल आई हैव टू डू इज, मैंने जाकर इसे सेव करना है। और यहाँ पे एक फ्लॉपी डिस्क बनी हुई है, उस पर आप क्लिक करते हैं, एंड ये प्रोजेक्ट यहाँ पे सेव हो जाएगा। ठीक है, सो इट्स बिन सेव्ड। आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई स्प्रेडशीट। ठीक है, ये ज़रा सा दोबारा एक्सटेंशंस वाला प्रोसेस को रिपीट कर दें प्लीज़ ऐसे एक दफ़ा। हाँ, बिल्कुल करता हूँ सर। मैंने एक्सटेंशन पे क्लिक किया, यहाँ पर ऑप्शंस आए, जैसे मैंने गूगल ऐप स्क्रिप्ट को ओपन किया, ऐप शीट नहीं, दैट परफॉर्म द डिफरेंट टास्क। मैं यहाँ पे ऐप स्क्रिप्ट पे क्लिक किया है, और यहाँ आकर मैंने कंट्रोल ए करके वो पूरा पेस्ट कर दिया था। ठीक है, एंड वंस आई पेस्टेड इट, ठीक है, मैंने उसको यहाँ पे सेव कर दिया था। क्योंकि मैं पहले सेव कर चुका हूँ, तो इट्स नॉट गिविंग मी द ऑप्शन टू डू इट अगेन, तो मैं इसे सेव कर चुका हूँ यहाँ पे। ठीक है, आई एम गोइंग टू गो बैक टू माई स्प्रेडशीट, एंड आई एम गोइंग टू रिफ्रेश इट। और जब मैं उसे रिफ्रेश करूंगा, तो आई विल हैव द ऑप्शन ऑफ सेंडिंग ईमेल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक बटन अपेयर हो जाएगा आपके सामने प्रिंसिपल टूल्स के नाम से, या इफ यू यूजिंग चैट जीपीटी तो हो सकता है कोई डिफरेंट नेम आ जाए, बट इट इज़ गोइंग टू बी एन एडेड ऑप्शन यहाँ पे। और आप जाकर उसमें सेंड मीटिंग इनवाइट्स पे जब क्लिक करेंगे, तो आपके पास वो ईमेल्स जो हैं वो रेलेवेंट इंडिविजुअल्स के पास चली जाएंगी। ये एक मिनट, मैं थोड़ा सा मैंने जो ऊपर की जो स्क्रिप्ट की जो लाइन है फंक्शन माय फंक्शन, उसको डिलीट करना है, थर्ड से शुरू करके पेस्ट करना है जहाँ से वो ऑटोमेटिकली आ रहा है, ये सर पहली आप दो रोज पे। डिलीट करेंगे तो वापस लाइन वन पे चला जाएगा, आप वहाँ पे जाके पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डिलीट नहीं भी करते, तो जो लाइन टू है वहाँ जाके आप पेस्ट कर दें तो भी सेम काम होगा। अच्छा ठीक है, और उसके बाद ऊपर इसको डिप्लॉय करना है जी सर, उसको डिप्लॉय करना है। एज ए न्यू डिप्लॉयमेंट के तौर के ऊपर।
यस सर, बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें क्या करना है? प्लीज सिलेक्ट डिप्लॉयमेंट टाइप इसमें आ रही है। सर मैं दोबारा आपको रिपीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं स्टॉप माई स्क्रीन हेयर एंड एक सेकंड पेस्ट करता हूँ। मीनवाइल प्लीज चैट में लिखते हैं इफ यू आर डन। तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है उसको फॉलो करने में, यू कैन ऑलवेज राइट इट इन द चैट, ओपन योर माइक एंड टेल मी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। शेयर माय स्क्रीन। अब देखेंगे आपने जो ये शीट प्रिपेयर की थी उसके ऊपर आप एक्सटेंशंस में जाएंगे, आप जाएंगे ऐप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे उसे पेस्ट करेंगे, कंट्रोल बी। आप पेस्ट करने के बाद उसे सेव करेंगे एंड देन फिर उसको रन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, गोइंग टू रन। जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो पहली दफ़ा वो आपसे परमिशंस रिव्यू करने के लिए कहेगा। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी अ स्केरी नोटिफिकेशन कि दिस इज़ नॉट वेरीफाइड एक्सेट्रा, बट बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेफ प्रोसेस, आप खुद अपनी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं और अपनी ही ईमेल आईडी पे ऐड कर रहे हैं, तो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। आप सिर्फ एडवांस पे क्लिक करके गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में जाकर उसे रिक्वायर्ड परमिशन ग्रांट करते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी सेफ प्रोसेस, नथिंग इज़ गोइंग टू हैपन टू योर कंप्यूटर और योर ईमेल आईडी। ऑल यू हैव टू डू इज के यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन सेंड। ठीक है, उसके बाद आप चाहें तो वापस अपनी गूगल शीट में आ जाएं। ठीक है, और इसको रिफ्रेश कर दें। ठीक है, और जब आप उसे रिफ्रेश करेंगे। ये मेरा मुनीर, सॉरी, मैं वो नहीं आ रहा है क्योंकि मैं जब स्क्रिप्ट पेस्ट करता हूँ ना, हम्म। और उसमें जाके ऊपर फिर सेव का बटन है, हम्म। वो प्रेस करता हूँ, तो इसको हमें फिर डिप्लॉय पे जाना है या रन पे करना नहीं है, सर, क्या रन। करना रन पे क्लिक करना है आपने, है? ओके, क्योंकि रन हम पे इसको मैंने। लॉन्च नहीं कर रहे ना एज एन ऐप अभी। अभी हम सिर्फ इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, तो अभी सिर्फ से ओके, हम। ठीक है। ठीक है, वो पहले परमिशंस रन कर रहा है एडवांस में जा करके इसको। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। वी गोइंग टू गो बैक टू एक्सटेंशन से, क्योंकि मैं अभी उसको ग्रांट कर चुका हूँ परमिशन, तो इट वोंट शो इट अगेन फॉर मी। अगर आप चाहें तो सिंपली आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। एडवांस पे जाएंगे, सबसे नीचे बॉटम पे लिखा होगा टू द ईमेल प्रोवाइडर, उस पर क्लिक करें, रिक्वायर्ड परमिशन उसे दे दें। ठीक है, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन रन। एक मिनट, ये यहाँ पे जब मैंने इसको रन किया तो उसने खैर सेफ्टी फीचर्स की वजह से उसको अलाउ नहीं किया उसने। सर तो उसे अलाउ कर दें आप प्लीज़। नहीं नहीं, अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा था उसमें अभी, खैर वो। नीचे आएगा ऑप्शन, एडवांस पे क्लिक करें, सबसे बॉटम में जाएं, वहां पे नीचे जो बटन है उस पर क्लिक करें, अलाउ हो जाएगा। एक मिनट, पहले मैंने रन किया, तो रिव्यू परमिशंस में गए, हम्म। एडवांस में क्लिक किया, यस, उसके आगे कंटिन्यू इफ यू अंडरस्टैंड द रिस्क, फिर ईमेल एड्रेस को क्लिक कर दूं? बिल्कुल कर दें। ठीक है, और वो कोर फिर क्रोम को overall- दोबारा खोल देगा? हाँ, जितने भी बॉक्सेस हैं उन सबको चेक कर लें और जाकर उसे अलाउ पे क्लिक करते हैं, एंड वंस यू आर डन इट, एक तो मिनट, रन ये ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। और आप अपनी गूगल शीट्स में जाकर देखेंगे तो आपको स्टेटस दिखा देगा कि कहाँ कहाँ ईमेल सेंड हो गई है। एंड बिकॉज इन कॉपिंग एंड पेस्टिंग मैंने यहाँ पे मेल टू भी कॉपी कर लिया था, तो डॉक्टर सुमेरा एंड डॉक्टर शिराज को ईमेल नहीं गई, बट डॉक्टर नूरी किरण को ईमेल रिसीव हो गई है। और हम जाके अपने आउटबॉक्स में उसे देख भी लेते हैं, डॉक्टर नूरी किरण के इनबॉक्स में वो ईमेल आ भी गई होगी। यू रिसीव द ईमेल, एंड सिमिलरली डॉक्टर नूरी किरण ने जो ईमेल भेजी है वो भी डॉक्टर सुमेरा डॉक्टर शिराज को चली गई होगी और उनको भी मिल गई होगी। आई एम गोइंग टू शो माई ईमेल आउटबॉक्स, एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ईमेल भेज दी गई होगी। जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश इट।
ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि डॉक्टर न्यूरिकरण को इनविटेशन जा चुकी है फॉर द करिकुलम कमिटी मीटिंग, उसमें उनका नाम भी एंटर्ड है, तो इट्स नॉट अ जनरल ईमेल, इट इज स्पेसिफिक। उनको इनवाइटेड है, मीटिंग की डिटेल्स भी लिखी हैं कि कब मीटिंग है। आप चाहें तो उसे कस्टमाइज कर सकते हैं, बिकॉज अभी तो वे लीविंग अ लॉट ऑफ ब्लैंक्स फॉर एआई टू फिल, तो उसने अपनी मर्जी से एक टाइम एंड प्लेस वगैरह लिख दिया है, बट आप एक कस्टमाइज ईमेल भी लिख सकते हैं, और वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला हमने यूज़ केस समझ लिया कि किस तरह हम ईमेल भेज सकते हैं लोगों को इंडिविजुअलाइज्ड, जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन अ बटन। एंड चाहे वो एक ईमेल हो या 1000 ईमेल्स हो, वो ऑटोमेटिकली चली जाएंगी, सबके नाम उसके अंदर एंटर्ड होंगे, correct होंगी, और वो सब जा सकती हैं। Now what we're going to do is we're going to add a layer of complexity on top of it. अभी तक हमने सिर्फ ईमेल्स भेजना सीखा था, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि ना सिर्फ हम ईमेल्स भेजेंगे, बट हम उनको रिमाइंडर्स भी भेजेंगे ऑन सिलेक्टेड डेट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर स्केड्यूलिंग अ मीटिंग फॉर नेक्स्ट वीक, ठीक है, फरवरी की 15th है, 16th को हम एक मीटिंग स्केड्यूल कर रहे हैं, और आज हमने उनको पहली इनवाइट भेजी है। तो व्हाट वी गोइंग टू डू इज कि हम एक फंक्शन इनबिल्ड करेंगे जिससे उन्हें हर 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, या किसी भी एक पर्टिकुलर डेट पे जो हम मेंशन करते हैं, उस पर ऑटोमेटिकली उन्हें एक रिमाइंडर चला जाए बाय द प्रेस ऑफ अ बटन, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है कि यू गोइंग टू गो बैक टू योर एआई मॉडल, ठीक है, चाहे वो जेमिनाई हो, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जो भी एआई मॉडल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, यू गोइंग टू गो बैक टू इट, ठीक है, एंड यू गोइंग टू टाइप लेट्स add another function such that we can have a button sheet to send reminders on, लेट्स से कोई भी डेट एंटर कर देते हैं, फेब्रुअरी। मैं आज की डेट इसलिए कर रहा हूँ सो दैट वो फंक्शन आज ही इनेबल करके हम इसको सैम्पल करके दिखाएंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड अ फंक्शन फॉर इट, रिमाइंडर्स फैकल्टी, ठीक है। एआई मॉडल के अंदर सिर्फ मैंने रिमाइंडर का कहा है, और अपनी शीट के अंदर जाकर मैं खुद एक डेट ऐड कर देता हूँ, रिमाइंडर के नाम से यहाँ पे डाल देता हूँ। I'm going to add February 1, 2026, ठीक है। I'm going to copy it and then paste it यहाँ पे भी, ठीक है। एंड क्योंकि ये ईमेल्स गलत हो गई थी, तो मैं यहाँ पे अपनी ही ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। सिंपल सा टास्क था, शीट में गया हूँ मैंने और जाके February 1 लिख दिया है, ठीक है। चाहे तो मल्टीपल रिमाइंडर्स हो सकते हैं, मल्टीपल डेट्स पे हो सकते हैं, कस्टमाइज रिमाइंडर्स भी हो सकते हैं, लेकिन वी ट्राइंग टू कीप इट वेरी सिंपल फॉर आवर इनिशियल टास्क्स, एंड देन वी गोइंग टू कीप ऑन मेकिंग इट मोर फंक्शनल एंड मोर कॉम्प्लेक्स एज वी गो अलॉन्ग, ठीक है। अच्छा, इसमें मेरा जो है ये स्टेटस वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है, शायद डिप्लॉय मैंने नहीं किया इसलिए नहीं आ रहा है क्या? ज्वाइन नहीं करना, सिर्फ आप रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो लिखा हुआ आ जाएगा, सेंड होगा या नहीं होगा। स्टेटस तो मैंने खुद उसको एज अ हेडिंग डी ब्लॉक में खुद लिखा है, स्टेटस अच्छा को शो। डॉक्टर मुनीब, हम इधर ऊपर जो जेमिनाई है उसको यूज नहीं कर सकते अभी, जो अब जेमिनाई का नया आया है ऊपर टूल बार में? मैम चाहें तो आप उसे वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ना कोड को बार बार, एंड डेमोन्स्ट्रेशन के पर्पस के लिए मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ इसे, और अभी ठीक आपके है, लिए वरना कुछ अदरवाइज यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं हम। वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसे। ओके, सो सब लोगों ने रिमाइंडर लिख लिया है। अब मैं वापस जाऊंगा जेमिनाई के ऊपर, उसने यहाँ पे एक फंक्शन ऐड कर दिया है मेरी स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर सेंड करने का है। तो अब हमने क्या करना है, हमने स्क्रिप्ट यहाँ से कॉपी करनी है अगेन, ऑप्शन 2 हमने जाना है, इसको स्क्रिप्ट को सेव करना है, फिर हमने रीलोड करना है अपनी स्क्रिप्ट को, और नया आइटम जो है वो हमारे सामने, बटन जो है वो आ जाएगा। सो वी गोइंग टू गो बैक टू अवर गूगल शीट्स, वी गोइंग टू गो बैक टू एक्सटेंशंस, और हम जाके उसे अपनी स्क्रिप्ट को अपडेट करें, क्योंकि हमने उसको अब और कॉम्प्लेक्स बनाया है। जब हमारी फाइनल स्क्रिप्ट एक दफ़ा ऐड हो जाएगी, फिर हमें बार बार उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अभी क्योंकि हम उसको स्टेप अप करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, इसलिए मैं अपनी स्क्रिप्ट को चेंज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ आया हूँ, मैंने स्क्रिप्ट नहीं पेस्ट किया और मैंने सेव कर दिया है, ठीक है। सेव करने के बाद मैं वापस अपनी स्प्रेडशीट में चला गया हूँ, और यहाँ पे जाकर उसे मैंने रिफ्रेश कर दिया, ठीक है। और जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया तो आप देखें एक नया बटन आ गया, फैकल्टी ईमेल्स के नाम से, यहाँ पे कैन यू ऑल सी इट, एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट मुझे दो ऑप्शंस मिल रहे हैं, सेंड इनविटेशंस
एंड सेंड रिमाइंडर्स, क्योंकि इनविटेशन मैं पहले भेज चुका हूँ तो अब मैं रिमाइंडर्स सेंड करूँगा। सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेंड रिमाइंडर्स, और वो स्क्रिप्ट रन हो रही है। एंड ठीक है, रिमाइंडर्स जा चुके हैं, और उसने एक और ऐड कर दिया है। ठीक है, सो रिमाइंडर्स हैव बीन सेंट। डॉक्टर नूरी किरण, आप अपनी ईमेल चेक कर सकती हैं, आपको रिमाइंडर आ गया होगा। मैं भी अपनी आउटबॉक्स में दिखा देता हूँ, मैं दोबारा भी भेज देता हूँ। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन सेंड रिमाइंडर्स एंड रिमाइंडर्स हैव बीन सेंट। सो ऑल आई हैव टू डू इज के बस मुझे अपनी ऐप स्क्रिप्ट गूगल शीट्स ओपन करनी होगी, और जाकर इस बटन पे क्लिक करके मैंने सेंड रिमाइंडर भेजना होगा, और चाहे वो मेरे कितने भी मेंबर्स ऑफ द फैकल्टी हो, सबको वो ईमेल का एक रिमाइंडर चला जाएगा। नाउ दिस इज अनदर लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी, और मु- इसको हम फंक्शनल मुनीर, बनाए। मुनीर, मेरे पास जो है ना ये फैकल्टी ईमेल्स का ऑप्शन ऊपर नहीं आ रहा है। मैंने अभी दोबारा स्क्रिप्ट तो मैंने जनरेट कर दी है, उसके बाद जो मुझे उसमें जाना है, ये न्यू मैं बताता हूँ, प्रोजेक्ट में जाना है। नहीं नहीं, आपने किसी न्यू प्रोजेक्ट में नहीं जाना। आपने उसी स्क्रिप्ट को गूगल शीट्स में आए, आप एक्सटेंशंस में गए, ऐप स्क्रिप्ट पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप अपनी शीट पेस्ट करेंगे। ठीक है, जो भी स्क्रिप्ट है वो पेस्ट करेंगे, और सिर्फ आपने सेव पुरा, करना है, दैट इज ऑल। पुराने वाली का क्या करना है? उसको डिलीट कर देना सर, रिप्लेस कर देना उसे। अच्छा, अगर वो आ पुरानी रही वाली है तो। सिंपल स्क्रिप्ट हम इस्तेमाल नहीं कर रहे अब हमने उसको अपडेट किया है, यानी हम उसमें एक रिमाइंडर का ऑप्शन भी ऐड करें। तो पुरानी स्क्रिप्ट को डिलीट करके हम इसको पेस्ट कर देंगे। सिर्फ अगर आप उसे कंट्रोल ए करके कंट्रोल वी करेंगे, ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगी। रिप्लेस करने के बाद यू हैव टू सेव इट, एंड वंस यू सेव्ड इट यू गोइंग टू गो बैक टू योर स्प्रेडशीट एंड जस्ट क्लिक ऑन रिफ्रेश। ये एक मिनट जस्ट, मैंने दोबारा मीनवाइल मैं मैंने। दिखा देता हूँ अपने सेंट आइटम्स भी, के दोबारा ईमेल्स जा चुकी हैं टू द फैकल्टी मेंबर्स। ठीक है, जिसमें रिमाइंडर्स हैं यहाँ पे। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ डॉक्टर नूरी किरण के पास चला गया है। Okay, so it says, Dear Dr. Noor, this is a friendly reminder about the upcoming curriculum meeting scheduled for March 15th. We look forward to your best regards, curriculum committee. चाहे तो इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, and how we're going to do that मैं ये दोबारा आपको बताऊंगा। Okay, Dr. Rizwana saying mine is not running. Uh, I open advanced emails shows and I click it, but blank page shows up. ठीक है डॉक्टर रिजवाना, एक दफ़ा और ट्राई करें, नहीं हुआ तो आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, एंड देन आई एम गोइंग टू ट्रबल शूट इट फॉर यू। डॉक्टर शिराज, वी कम बैक टू यू। क्या आपके पास अब ये काम कर रहा है? नहीं, मेरे पास जो आ रहा है वो अटेम्प्ट टू एग्जीक्यूट सेंड मीटिंग इनविटेशन बट इट वाज डिलीटेड, ये ओ, आ रहा है। आपने एग्जैक्ट वही स्टेप्स फॉलो किए जो मैंने आपसे कहा था? जी, मैंने जो सबसे पहले मैं जेमिनाई में गया था, जेमिनाई में मैंने वहाँ पे लिखा था लेट्स ऐड अनदर फंक्शन दैट वी कैन ऐड अ बटन इन शीट्स टू सेंड अ रिमाइंडर टू फैकल्टी। ठीक है, हम्म। और उसकी इसने स्क्रिप्ट जनरेट की थी। उस हम्म। स्क्रिप्ट को मैंने दोबारा जो है वो गूगल शीट, वही शीट जिसमें हम काम कर रहे थे, हम्म। मैंने उसको ओपन किया, और हम्म। उसमें एक्सटेंशन को दोबारा क्लिक करके ऐप स्क्रिप्ट में गया हूँ। और हम्म। ऐप स्क्रिप्ट में जाके मैंने जो है वो सेव किया। सेव किया। सेव करने के बाद उसको रन किया या रन करने की डिप्लॉय। जरूरत नहीं है सर, कर दिया तो चले, कोई इसमें नुकसान नहीं है, लेकिन रन हम उसे अपनी शीट्स में भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, जब यहाँ इसको बटन आ इस रन कर भी दिया तो कोई बुरी बात नहीं है। आपने ये डेट्स ऐड की थी रिमाइंडर के लिए? नहीं, वो कहाँ पे ऐड करनी है डेट? सर यहाँ शीट में ऊपर रिमाइंडर लिखकर यहाँ पे डेट ऐड करनी है, वो फरवरी। वो शीट में डेट डाल दी थी मैंने, रिमाइंडर डेट डाल दी थी, 1 Feb 2026 डाल दी थी। बस ठीक है, परफेक्ट हो गया। ठीक है, और अगर फिर भी आपके पास ना चल रहा हो तो एक और ट्रबल शूटिंग ऑप्शन आपके पास ये होता है कि जब आप अपनी ऐप स्क्रिप्ट के अंदर होंगे, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा ट्रिगर का। ठीक है, ये देखिए अलार्म क्लॉक बनी है यहाँ पे, मैं उस हाँ। पर क्लिक करूंगा, मैं आ जाऊंगा ऐड ट्रिगर। ठीक है, और विच फंक्शन टू रन। ठीक है, दो यहाँ पे फंक्शंस हैं, मैं रिमाइंडर वाले पे क्लिक अच्छा, करूँ। मेरे इसमें ना ये दोनों फंक्शंस नहीं आ रहे, ये पहले भी मेरे पास जनरेट नहीं हुआ था। चलो तो फिर ऐसा करते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ जो मैंने स्क्रिप्ट जनरेट की है, और आप वो ऐड करके देखें। ठीक है? ओके, अच्छा, मुझे सिर्फ ये चीज़ पूछनी है, ये डिप्लॉय के बटन को यूज़ करना होता है या नहीं यूज़ नहीं करना नहीं, होता है? जरूरत नहीं है, डिप्लॉय के बटन को यूज़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फिर और आपकी वेब ऐप को लॉन्च करने पे चला जाएगा, और वो अभी हम इस स्टेज पे नहीं कर रहे हैं, वी गोइंग टू डू इट लेटर इन द वर्कशॉप। आप चाहें तो एक नई शीट बना लें। ठीक है, एंड देन यू कैन फॉलो द स्टेप्स अगेन, जस्ट अ फ्यू स्टेप्स। ठीक है, मैं बना मैं
मैं न्यू शीट मैंने बना ली। ओके परफेक्ट। ठीक है। सो व्हाट अबाउट दी अदर्स, आप सब लोगों की ईमेल्स एंड रिमाइंडर्स वगैरह बन गए हैं, शो हो रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? I'd like to hear from you so that हम उसके बाद एक और एडेड लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी उसके अंदर ऐड कर सकें। ठीक है। मेरा सिंटेक्स एरर आ रहा था, देन आई आस्क्ड जेमिनी टू करेक्ट इट 2 टाइम्स। आई डोंट नो व्हाट इट डिड, मगर अब काम कर रहा है। परफेक्ट, चलें, आपने खुद ही ट्रबल शूट कर लिया। ओके, सो अब हम आ जाएंगे ऑन अनदर लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी। अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत डल है एंड बहुत सिंपल है, लेकिन इवेंचुअली यू गोइंग टू सी के हाउ यूजफुल इट कैन बिकम। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय वैसे स्क्रीन। जस्ट थॉट दैट डॉक्टर मुनीप, अगर हमारी ये जीमेल का मेमोरी फुल हो रही हो तो इट वॉन्ट वर्क। नहीं नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ डिलीट कर दीजिएगा कुछ चीज़ें। और वैसे भी क्योंकि ये स्क्रिप्ट क्रिएट करने में तो हार्डली आपकी कुछ बाइट्स इस्तेमाल हो रही होंगी, कुछ केबीज इस्तेमाल हो रही होंगी, तो इवन इफ इट्स 99% फुल यू स्टिल हैव इनफ स्पेस टू रन दी स्क्रिप्ट्स एंड डू दिस वर्क। राइट। ये बहुत राइट, ठीक डेटा है। है, कोई इमेजेस नहीं है, कोई लार्ज फाइल्स नहीं है इसके अंदर, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी हम्म। सिंपल। ठीक है। ठीक है, सही। ओके, सो अब हम आ गए हैं वापस ऑन आवर प्रेजेंटेशन। ठीक है। एंड सबसे पहले हमने क्या किया, हमने मीटिंग इनवाइट्स भेजे, उसके बाद हमने रिमाइंडर्स भेजे ऑन सिलेक्टेड डेट्स, और अब हम क्या करेंगे, रिप्लाईज भी चेक करेंगे उनके। ठीक है। सो ना सिर्फ विल बी एबल टू सी यू नो who we sent the reminders to, but whether or not they've replied, acknowledge कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो भी हमें पता चल जाएगा। तो we're going to go back to our Gemini। ठीक है। हम वापस से Gemini के पास जाएंगे यहाँ पे, और हम उससे कहेंगे to add another function to the script such that we get to know who has replied to the email or the reminder। ठीक है। सो अब यहाँ पे हमने जस्ट क्लिक कर दिया है। तो अब जो हमारे पास शीट्स में समरी आएगी, उसमें ना सिर्फ हमें पता होगा कि हमने अपनी ईमेल्स भेज दी हैं, बट ये भी कि किस किस ने हमें रिप्लाई किया है। और अगर आप चाहें तो उसके रिप्लाई को भी आप शीट्स में व्यू कर सकते हैं, और अपने आप को ईमेल भी कर सकते हैं उसकी एक समरी रिपोर्ट। या फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव कोई मीटिंग का कन्वीनर है जिसके बिहाफ पे आप ये काम कर रहे हैं, या इफ़ यू आर द कन्वीनर और आप मीटिंग के चेयर को भेजना चाहते हैं समरी के, हाउ मेनी पीपल हैव बीन इनवाइटेड, हु हैज़ एक्सेप्टेड, व्हाट हैव दे रिटन इन रिप्लाई, तो वो सब भी आप लोग के पास डेट टाइम स्टैम्प्स के साथ एक रिपोर्ट के फॉर्म में ईमेल हो सकता है। पहले हम ये देख लेते हैं, इनेबल करते हैं सिर्फ फंक्शन ऑन चेकिंग हु हैज़ रिप्लाइड एंड हु हैजंट। ठीक है। और उसके बाद इन आर नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी गोइंग टू डू इज कि हम वो फंक्शन भी इनेबल करेंगे। तो अगेन मैं एक स्क्रिप्ट जनरेट हुई थी, मैंने उसको कॉपी किया है कोड को यहाँ से। मैं वापस अपनी शीट्स में जा रहा हूँ, एक्सटेंशंस में जाकर ऐप स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करके, ठीक है, और मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ। ठीक है। नाउ दैट आई हैव अपडेटेड इट, ऑल आई हैव टू डू इज कि मैंने इसको सेव करना है। ठीक है। एंड देन आई गो बैक टू माई शीट्स। ठीक है। और आप में से कोई भी, फॉर एग्जांपल डॉक्टर नूरी किरण, आपको जो रिमाइंडर आया है ना उसका रिप्लाई करते हैं मुझे। ठीक है। ठीक है, और हम जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। वंस वी रिफ्रेश्ड इट, हमारे पास एक और ऑप्शन ऐड हो जाएगा, टू चेक फॉर रिप्लाईज। अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्लिक ऑन फैकल्टी ईमेल्स, आई गेट द ऑप्शन टू सेंड इनविटेशंस। ठीक है, जो मैंने दोबारा भेज दी हैं। ठीक है, इट्स आस्किंग फॉर परमिशन अगेन, जो कि मैं ग्रांट कर देता हूँ उसे। इसी बहाने आप लोग देख लेंगे प्रोसेस क्या है। मैं एडवांस पे क्लिक करूंगा। ठीक है। गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करूंगा, एंड मैं वहां जाकर इसको तमाम परमिशंस ग्रांट कर दूंगा। ठीक है। सो गोइंग बैक, स्टेटस सेंट, सबको ईमेल चली गई है, सबको दोबारा रिमाइंडर मैंने भेज दिया है। ठीक है। रिमाइंडर्स हैव बीन सेंट, एंड नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज के मैं जाकर यहाँ पर चेक करूंगा कि कौन कौन से रिप्लाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी ही ईमेल है जिस पे वो आ रहा है, तो मैं खुद ही पहले रिप्लाई करता हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू शो यू के किस तरीके से वो हो रहा है। ओके, सो आई गॉट द रिमाइंडर,
एंड आई एम रिप्लाइंग एज थैंक यू। ठीक है, ठीक है, इनविटेशन को भी मैं रिप्लाई कर देता हूँ एज अ थैंक यू। अच्छा, हम ये प्रोसेस भी ऑटोमेट कर सकते हैं कि जब हमें कोई ईमेल करता है तो हम कैसे उसे एक ऑटोमेटिक रिप्लाई कर सकते हैं। एंड वो रिप्लाई जनरल होने की जरूरत नहीं है, वो कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन स्पेसिफिक रिप्लाई भी हो सकता है। द स्क्रिप्ट इज गोइंग टू रीड व्हाट इज देयर इन द ईमेल एंड ड्राफ्ट अ रेलेवेंट रिप्लाई एंड सेंड इट। ओके, सो अब हम वापस जाते हैं अपनी शीट्स में और अब हम जाके यहाँ पे चेक करते हैं फॉर रिप्लाईज। ठीक है, और वो यहाँ पे बता रहा है हमें कि डॉक्टर नूरी किरण ने एंड डॉक्टर शिराज ने जो है वो रिप्लाई कर दिया और हमें उनका रिप्लाई रिसीव हो गया है। ठीक है, रिफ्रेश अगेन और आप देख सकते हैं कि रिप्लाई रिसीव हो गया है। एंड इफ़ यू वांट टू रीड द रिप्लाई है तो आपने सिंपली अपने जेमिनाई में जाना है और उसे कहना है कि ऐड द फंक्शन। मुनीर, मेरे पास ना ये नहीं आ रहा है, जो एक्सेल में आपका ऊपर बटन आ रहा है ना इसका, ये नहीं आ रहा सर आपने रिफ्रेश स्प्रेडशीट में। किया? रिफ्रेश भी किया लेकिन वो नहीं हुआ। शायद मैं सर भी खैर समझ रहा हूँ। आई हाँ, गो। आप अपने वापस जेमिनाई में जाएंगे और उसे कहेंगे कि वो बटन ऐड करे। ठीक है, स्पेसिफिकली उसे कह दें कि यू वांट अ बटन एडेड इन योर शीट्स। ठीक है, तो वो मॉडिफाई करे स्क्रिप्ट को इस तरह कि वो बटन भी विजिबल हो एंड शो हो जाएगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आ जाता है, बट इफ इन केस यू गेटिंग अ यूनिक रिप्लाई जिसमें वो बटन इंक्लूडेड नहीं है तो व्हेन यू डू दैट तो वो हो जाएगा। एंड इफ इन केस वो बटन नहीं आता तो डायरेक्टली आप ऐप स्क्रिप्ट में जहाँ रन लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो भी वो सेम काम करेगा। ठीक है, इज एनीबडी एल्स हैविंग द सेम प्रॉब्लम? डॉक्टर नूरी किरण, डॉक्टर सुमेरा, डॉक्टर सबा, एनीवन जिसके पास वो बटन ना आ रहा हो प्लीज मुझे बता सकते हैं, तो आई रिपीट द प्रोसेस फॉर यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐड फंक्शन कर रहा हूँ टू बी एबल टू रीड द रिप्लाई, रीड और व्यू द रिप्लाई इन शीट्स। ठीक है, और इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग सेटअप स्टेप होगा जिसके अंदर हम ये सारी की सारी डिटेल्स इन अ कॉम्प्रिहेंसिव मैनर मीटिंग के चेयर को भेज सकेंगे इन एन ईमेल ऑटोमेटिकली एंड इट्स गोइंग टू बी स्ट्रक्चर्ड ब्यूटिफुली। So remember, we're just doing the basics right now, which may not seem like a lot of automation. लेकिन as we step up, अब हम इसके ऊपर levels of complexity बढ़ाते जाएंगे, more difficult and more cumbersome tasks के use cases को हम यहाँ पे demonstrate करेंगे. So then you're going to get the feel के हाँ वाकई यहाँ पे बहुत useful automation हो रही है. So Dr. Noori Kiran says done. Great to see that you're following along. So अब यहाँ पे script मेरे पास दोबारा आ गई है. I'm going to copy it. I'm going to go back to my sheets, go to extensions, go to the app script, and then paste. अब देखिए बार बार हमें यहाँ पे पेस्ट इसलिए करनी पड़ी है क्योंकि हम उसको अपडेट कर रहे हैं अपनी शीट को ना। वंस फाइनल स्क्रिप्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड तो उसको बार बार यहाँ पे ज़रूरत नहीं होगी चेंज करने की। आप सिर्फ जाकर अपनी शीट्स में जाकर बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे उसको रिफ्रेश कर दिया है। आई एम गोइंग बैक टू माई शीट और उसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और यहाँ पे मुझे नजर आ जाएगा कि किस किस ने जो है वो रिप्लाई कर दिया। सो मैं टू चेक फॉर रिप्लाईज। ठीक है, एंड क्योंकि ये बटन ऐड करने के बाद से किसी ने रिप्लाई नहीं किया है सो आई एम गोइंग टू गो बैक, राइट अ रिप्लाई सो दैट यहाँ पे वो रिप्लाई विजिबल हो जाए, और या आप में से जिसको भी वो ईमेल आई है आप रिप्लाई लिख देंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो विजिबल हो जाएगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे जाकर रिप्लाई एक लिख देता हूँ रियल टाइम में सो दैट आप ये देख लें। Just going to write ABC and send to save time. I'm also going to write a reply to जो initial invitation आई थी, just some random gibberish. I'm going to go back to my sheets. I'm going to refresh. ठीक, and go and check for replies. और आप देख सकते हैं कि एक और नया रिप्लाई आ गया है इसके अंदर और यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डॉक्टर मुनीब ने, सॉरी डॉक्टर सुमेरा ने यहाँ पे रिप्लाई लिख दिया है, डेट मेंशन्ड है एंड जो भी रिप्लाई लिखा है वो यहाँ पे शोकेस हो जाएगा। इन दिस केस मैंने यहाँ पे आई जस्ट रोट बी तो यहाँ पे रिप्लाई यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, सो नॉट ओनली कैन यू सेंड ईमेल्स, ठीक है, यू कैन सेंड रिमाइंडर्स एंड यू कैन चेक कि किस किस को रिमाइंडर रिसीव हो गया है और उसने रिप्लाई में क्या लिखा है।
ठीक है। और क्योंकि हमने आज की ही डेट लिखी थी तो वो तो ऑटोमेटिकली रिमाइंडर चला गया। आप अगर आज से 10 दिन बाद की भी डेट लिखेंगे तो यू वुडंट इवन नीड टू ओपन योर शीट अगेन, वो ऑटोमेटिकली उस दिन पर वो रिमाइंडर चला जाएगा। अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम ऐड करना चाहते हैं कि सुबह 9 बजे जाए तो वहाँ पे एक नए कॉलम के अंदर वो टाइम भी आप ऐड कर दें, ठीक है। एंड देन ऑन दैट पर्टिकुलर डेट सुबह 9 बजे रिमाइंडर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई हैड दिस मीटिंग स्केड्यूल्ड विद यू ऑल, जिसमें हमने ये अपनी वर्कशॉप है, तो अगर मैं यहाँ पे उसके लिए अपनी एक शीट बना देता और उसके अंदर से मैं लिख देता कि सुबह 9 बजे आई वॉन्ट रिमाइंडर सेंड, तो आई वोंट रियली बी रिक्वायर्ड टू रिफ्रेश इट और टू क्लिक ऑन रन। ऑटोमेटिकली वो उस डेट पे, वो उस टाइम पे एक रिमाइंडर आपको ईमेल में भेज दिया जाता ऑटोमेटिकली, बाय एआई, ठीक है। और अभी तो वो अपने जनरल रिप्लाईज भेज रहा है, अगर मैं चाहूँ तो कस्टम रिप्लाईज भी भेज सकता हूँ। मैं खुद भी ईमेल लिखकर इस बॉक्स में ऐड कर सकता हूँ तो वही पर्टिकुलर ईमेल जाएगी। अगर मैं कहूँ तो उसको HTML emails भी आपको भेज सकता है, which are very colorful, which have graphs etc, and then pictures in them, which look really nice। तो वो भी मैं आपको एंड में सिखाऊंगा कि किस तरीके से करना है। ओके, सो लेट्स चेक द चैट। इज एनीबडी हैविंग एनी ट्रबल सो फार? रिप्लाईज आप लोगों को विजिबल हो रहे हैं? अब वी गोइंग टू ऐड द फाइनल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इन दिस पर्टिकुलर यूज केस। ये जो हमारा पहला यूज केस है, इसके अंदर हम अपना लास्ट स्टेप ये करेंगे, ठीक है। वी गोइंग टू अपडेट द स्क्रिप्ट such that I am able to send this data with email when and to the meeting chair, ठीक है। और मीटिंग चेयर की चाहे तो ईमेल आईडी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट में बाद में भी ऐड कर सकते हैं। मैं अपनी ही ईमेल आईडी यहाँ पर लगा देता हूँ, ठीक है। ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस अगर आप मीटिंग के कन्वीनर थे एंड आपने अपने चेयर को एक रिपोर्ट भेजनी है, या फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग, यू डू हैव एन असिस्टेंट हु इज़ डूइंग दिस फॉर यू, जिसने सिर्फ वो स्क्रिप्ट बनाई है और वो बाद में आपको भेज सकता है रिपोर्ट ईमेल के अंदर ऑटोमेटिकली कि किस तरीके से किस किस को इनवाइट किया गया है, किस किस ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया है, कब किया था और क्या रिप्लाई में लिखा था, ठीक है। टू सेव टाइम एंड टू नॉट हैव टू गो टू अगेन पेस्ट इट अगेन, मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से वो शो होगा, ठीक है। यहाँ पे शो होगा, ठीक है, सेंड रिपोर्ट टू चेयर के नाम से। और जब मैं क्लिक करूंगा सेंड रिपोर्ट टू चेयर तो वो ऑटोमेटिकली भेज देगा मुझे, और वो इस फॉर्म में मेरे पास वो रिसीव होगी, ठीक है। डॉक्टर मुनीब, यहाँ पे ही कोई बटन डाल दें फॉर रिफाइनिंग आवर ईमेल्स, या हमने क्या क्या भेजना है, हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख दें तो। जस्ट मिनट, और इस तरह से आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। हम्म, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो रिपोर्ट आ गई है यहाँ पे, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस किस को गई थी वो ईमेल, कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितने लोग इनवाइटेड थे, उनमें से कितने लोगों ने रिप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन सेंड अ मीटिंग रिपोर्ट टू द चेयर जस्ट बाय क्लिकिंग अ बटन इन योर शीट। तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइज करके टेबल बनकर आपके चेयर पर चला जाएगा कि हाउ मेनी पीपल यू इनवाइटेड। चाहे तो यहाँ पे डेट स्टैम्प, टाइम स्टैम्प वगैरह सब आप लगा सकते हैं, ठीक है। एंड देन उनमें से किस किस ने रिप्लाई किया वो यहाँ पे एक लोगों की फॉर्म में जो है वो शो हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर नूरी के लिए मुझे दोबारा बताएंगे आप कहाँ पे कौन सा बटन ऐड करवाना चाह रही हैं, हम कर देते हैं। सर आई वांट कि मैं मैं इस पर हैंड ऑन इसी भी कर देता हूँ। नंबर 5 में ही आप ईमेल रिवीजन का एक डाल देते हैं हम, कि हम अपने यहाँ पे ईमेल का जो कंटेंट है वो वहां पे लिख दें, कॉपी पेस्ट उधर ही कर लें एक्सेल शीट में। डन है, डन है, अभी कर लेते हैं। तो अभी ये लास्ट वाले स्टेप का पेस्ट कर लूँ एंड देन फिर हम आपकी वाली रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने नई स्क्रिप्ट ऐड की, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, आई वेंट बैक टू माई शीट, ठीक है। तो मैंने उसको रिफ्रेश किया,
ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद जो मेरा बटन था फैकल्टी ईमेल्स का, उसके अंदर आप देखेंगे एक बटन ऐड हो गया है सेंड रिपोर्ट टू चेयर के नाम से, और उस पर जब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, तो मुझे एक रिपोर्ट सेंड कर दी गई है। मैं रिपोर्ट आपको दिखा देता हूँ कि मुझे रिसीव हो गई है ऑन दी एड्रेस जो मैंने स्पेसिफाई किया था उसे। ये देखें, रिपोर्ट आ गई है करिकुलम कमेटी इनविटेशन स्टेटस की, एंड आप देख सकते हैं कि दिस इज ब्यूटीफुल टेबल जिसमें बताया गया है कि कौन कौन इनवाइटेड है, उनके क्या ईमेल एड्रेसेस हैं, उनके क्या डिपार्टमेंट्स हैं, उनको ईमेल सेंड हो गई है, उनको रिमाइंडर सेंड हो गया है, और उनके रिप्लाईज जो हैं वो रिसीव यहाँ पे हो गए हैं। दिस ऑल्सो समरी अवेलेबल, टोटल इन्विटेशंस, टोटल रिमाइंडर्स, एंड डेट टाइम स्टैम्प है कि कभी रिपोर्ट जनरेट हुई थी। तो जस्ट बाय क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन सेंड इट टू योर प्रिंसिपल, टू योर डिपार्टमेंटल चेयर, और योर जूनियर्स कैन सेंड इट टू यू इफ यू आर चेयरिंग द मीटिंग। तो आपको एक अपडेटेड स्टेटस मिल जाएगा कि किसको इनवाइट किया गया था एंड किस किसने एक्नॉलेज किया था, और एंड देन नोबडी कैन बैक आउट ऑफ इट कि भाई हमें ईमेल नहीं मिली थी या हमने देखा नहीं था एक्सेट्रा। ओके, राउंड ऑफ नूरिकरण सेज के हम खुद अपनी मर्जी की ईमेल लिखना चाहते हैं, तो दैट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस वेल। यू हैव टू गो इनटू जेमिनी, ठीक है, and then we're going to say update the script such that the emails sent for invitation have this exact text written इन देम, ठीक है। और फिर जाकर नीचे आप ब्रैकेट्स के अंदर वो टेक्स्ट लिख सकती हैं, इट कैन बी एनीथिंग, आई एम जस्ट राइटिंग gibberish टू सेव टाइम, ताकि हम अपने अगले यूज केसेस पे भी चले जाएं। देन मैं रन करूंगा, जो स्क्रिप्ट यहाँ पे जनरेट होगी उसको मैं कॉपी करूंगा, जाकर गूगल शीट्स में पेस्ट करूंगा, सेव करूंगा, एंड देन जब मैं दोबारा क्लिक करूंगा ऑन सेंड इनविटेशन, तो इंस्टेड ऑफ द स्टैंडर्ड इनविटेशन जो वो भेज रहा था, जो मैंने एग्जैक्ट टेक्स्ट उसको बताया है, अब वो टेक्स्ट आएगा वहाँ पे, ठीक है। जस्ट वेटिंग फॉर द कोड टू लोड एंड देन आई एम गोइंग टू शो इट कि किस तरह से वो एग्जैक्ट जो है वो चली जाएगी, ठीक है। सो बेसिकली योर इमेजिनेशन इज द लिमिट, आप जो कुछ सोच सकते हैं वो सब कुछ ये कर सकता है, एंड द मोर यू कॉन्template ऑन what tasks you want automated, उतना ही बेहतर तरीके से आप इसे कर सकते हैं। सो वी हैव द स्क्रिप्ट रेडी, मैं इसको कंट्रोल करूंगा, सी करके कॉपी करूंगा, आई एम टू गो बैक टू माई शीट, गो टू एक्सटेंशंस, ऐप स्क्रिप्ट में जाके मैं वो जो एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट है उसे अपडेट करूंगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये ऐप स्क्रिप्ट को बार बार अपडेट करने का प्रोसेस सिर्फ अभी हम डेमोन्स्ट्रेशन की गर्ज से कर रहे हैं, ठीक है। वंस यू हैव परफेक्टेड द स्क्रिप्ट, आपको बार बार उसे अपडेट करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, बस एक दफ़ा सेव किया और हमेशा आपने सिर्फ वो गूगल शीट ओपन करके सिर्फ बटन्स प्रेस करने होंगे सेंड करने के, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ रन पे क्लिक करके भी वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, बट इट ऑलवेज लुक्स नाइसर इन द स्क्रिप्ट। तो मैंने उसको अपडेट कर दिया है, कॉपी कर दिया है, और अब जब मैं फैकल्टी इनविटेशंस को सेंड करूंगा, तो ठीक है, तो अब वो एग्जैक्ट टेक्स्ट गया होगा। लेट्स सी कौन कौन सी ईमेल्स पे गया। डॉक्टर नूरीकरण आप भी एडेड हैं यहाँ पे, तो आपको भी वो ईमेल आ गई होगी। मैं भी चेक कर लेता हूँ, मेरे पास भी रिसीव हो गई होगी, ठीक है। सो आई एम टू नहीं, रिफ्रेश। मेरा वही प्रॉब्लम अभी तक परसिस्ट कर रहा है। आई डोंट नो कि हाउ टू गो अबाउट इट, कि मैंने न्यू शीट बना के कोड को भी कॉपी पेस्ट किया, लेकिन जो फंक्शन बटन जो शीट के ऊपर आता है वो इनेबल नहीं हो रहा। वैसे कमांड जो है वो स्क्रिप्ट में रन जरूर हो रही है। रन हो रही है, ठीक है, लेकिन वो बटन अपडेट नहीं हो रहा है आपका वहाँ पे। हाँ, बटन्स मेक लाइफ वन हेल ऑफ डिफरेंस, के वो एक दफ़ा शीट अपडेट हो जाएगी वहाँ पे, तो वो हम्म। आपसे, जैसे आपने कहा कि नीचे से अब आप डेटा को चेंज कर दें हम्म। एंड यू कैन एग्जीक्यूट वेरियस फंक्शंस, आप उसी शीट के साथ मैनेज कर सकते हैं, राइट? जो मुझे समझ आया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आप ये कर सकते हैं कि सेकंड आपके यूज ये जो केस होगा ना। जेमिनाई में आज जो आप ये स्क्रिप्ट पूरी रन कर रहे हैं, हमें जो हम्म। सारा बना रहे हैं, इस स्क्रिप्ट को आप जो है वो सेव करके हमें पूरा एज एन फाइल के तौर पे, और जो आप आज की वीडियो है रिकॉर्डिंग की वो भेज दीजिएगा, तो मैं इसको रिवाइज करने मुझे हेल्प हो जाएगी प्लीज। एब्सोल्युटली सर, इनफैक्ट कि जो हमारा सेकंड यूज केस है ना, उसमें हम कोशिश करेंगे कि आप ही से स्क्रीन शेयर करवाएं एंड स्टेप बाय स्टेप फॉलो करवाएं, सो दैट अगर कोई वहाँ पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होती है तो हम उसको वहीं पे सेव कर लेंगे, ठीक है। डॉक्टर नूरी किरण ने भी यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, एंड देन ईमेल जो है वो वहाँ पे रिसीव हो गई होंगी। ओके, सो लेट्स गो बैक, ठीक है, टू आवर प्रेजेंटेशन, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से, सॉरी इंटरनेट इज लिटिल स्लो तो लैग कर रहा है,
नाउ वी गोइंग टू गो बैक टू आवर प्रेजेंटेशन और हम अपना सेकंड यूज केस देखेंगे। पहले यूज केस के अंदर आपने देखा कि हमने इनविटेशन सेंड कर दी टू आवर फैकल्टी फॉर अ मीटिंग। हमने उनको वहाँ पे एक डेट ऐड कर दी शीट के अंदर जिसपे ऑटोमेटिकली उस डेट एंड टाइम पे जो है रिमाइंडर चला जाएगा। हमने वहाँ पे चेक रिप्लाईज का फंक्शन ऐड कर दिया, हमने रीड रिप्लाई का भी फंक्शन ऐड कर दिया और फिर हमने सेंड रिपोर्ट टू शेयर का भी फंक्शन ऐड कर दिया। और अब हम ये करेंगे कि हम अपना सेकंड यूज केस करेंगे जिसके अंदर फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट एंड इफ़ यू हैव एनी रिसोर्सेज इन आर डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मीटिंग हॉल है एंड लोगों से बुक करना चाहते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही होती हैं, उनको स्ट्रीमलाइन करना, किसको देना है किसको नहीं देना, ये सारी प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे बाय मेकिंग अ गूगल फॉर्म एंड उसके अंदर लोग ऑटोमेटिकली उसमें बुकिंग करेंगे। अगर कोई ऐसी बुकिंग करने की कोशिश करेगा जो ऑलरेडी बुकड होगा तो उसको ईमेल चली जाएगी जिसके अंदर कहा जाएगा कि सॉरी द मीटिंग रूम इज़ नॉट अवेलेबल इन दैट टाइम। ज़रूरी नहीं है सिर्फ आप मीटिंग रूम्स के लिए करें, अपनी मीटिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड पीपल वांट टू मीट यू फॉर एनी पर्टिकुलर रीजन, जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सबा इज अ प्रिंसिपल, आई एम श्योर शी हैज़ मेनी पीपल हु आर सीकिंग अपॉइंटमेंट्स विद हर, तो आप एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं जो मैं आपको भी सैम्पल में दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि किस तरह एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट करना है जिसमें 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे एंड पीपल कैन फिल इट एंड ऑटोमेटिकली उनको ईमेल्स आती जाएंगी कि वेदर और नॉट उनका अपॉइंटमेंट बुक हुआ है आपके साथ या नहीं। गूगल कैलेंडर में ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट होंगी वो मीटिंग्स और आपके पास भी ईमेल आ जाएगी अब एवरी मॉर्निंग एट 9 AM के उस दिन के लिए आपके कितने मीटिंग्स बुकड हैं, क्या वो फिजिकल हैं, अगर वो ऑनलाइन है तो गूगल मीट का ऑटोमेटिक लिंक वहाँ पे जनरेट हो जाएगा। तो you'll have an idea कि on that particular day how many people are lining up to meet you. सिमिलरली ज़रूरी नहीं है कि आप कोई प्रिंसिपल ही हो और लोग आपसे अपॉइंटमेंट के लिए मिलने आ रहे हो। अगर आप कोई मेंटर हैं या आपके अंडरग्रेड स्टूडेंट्स आपके साथ कोई अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं या इफ़ यू आर रनिंग अ मेंटरशिप सेशन जिसके अंदर आपको कुछ 5-6 मेंटर्स मेंटीज अलॉटेड हैं, तो वो भी अपने मीटिंग्स आपके साथ इसी तरह से बुक कर सकते हैं। टाइम स्लॉट्स वगैरह कैसे बनाने हैं, किस तरह उनको ईमेल्स जाएंगी, किस तरह आपको ईमेल आएंगी कि आज के दिन में आपने कितने मेंटी से मिलना है। वी गोइंग टू शो ईच एंड एवरी स्टेप वन बाय वन टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल में जाएंगे और वहाँ पे हम एक सिंपल सा गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, सो हम चैट भी चेक कर लेते हैं। प्लीज शेयर द वर्कशॉप वीडियो विद ऑल पार्टिसिपेंट्स। ग्रेट, आई वुड ऑल्सो लाइक टू लर्न हाउ टू मेक एन एकेडमिक कैलेंडर। ज़रूर डॉक्टर साहब, हम बिफोर वी एंड द सेशन में एक एकेडमिक कैलेंडर भी बना लेंगे आपके लिए। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग माई शेयरिंग, आई एम गोइंग बैक टू माई ब्राउज़र। ठीक है, और अब हम जाकर नई विंडो ओपन करके एक गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे, सिंपल सा गूगल फॉर्म होगा। ठीक है, और अब हमने करना क्या है कि एक सिंपल सा गूगल फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसके अंदर सिर्फ 4 से 5, फॉर एग्जाम्पल सेमिनार बुकिंग बुकिंग रूम के लिए कर रहे हैं या लेट्स डू इट फॉर मेंटरशिप मीटिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, तो अब आपने ये करना है कि सिंपली एक गूगल फॉर्म क्रिएट करें, टाइटल दें उसे मेंटरशिप सेशन बुकिंग और ये क्वेश्चन उसके अंदर ऐड करें, मेंटी नेम, मेंटी ईमेल एड्रेस, सिलेक्ट मेंटोर, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और फिर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, मल्टीपल चॉइस नहीं करना है, ड्रॉप डाउन में करना है। ठीक है, एंड मेंटर नेम ब्लू, सिंपल, मेंटी नेम, मेंटी ईमेल एड्रेस, मेंटर्स के नाम कोई भी ऑप्शन देते हैं, अपना नाम लिख लें, 2-4 नाम लिख लें, 3-4 नंबर, इन विच एवर नंबर यू वांट। ठीक है, एंड देन डेट रिक्वेस्टेड एंड टाइम स्लॉट। ठीक है, वंस दैट इज डन आपने क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन रिस्पॉन्सेस। ठीक है, और क्योंकि मैं शीट ऑलरेडी बना चुका हूं तो मैं यहाँ पे व्यू इन शीट्स कर रहा हूँ, आपके पास लिखा हुआ आएगा ऑप्शन लिंक शीट। ठीक है, आप लिंक शीट पे क्लिक करेंगे और फिर व्यू शीट करेंगे तो आपके सामने एक शीट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर जब भी कोई वो फॉर्म फिल करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये वर्जन्स आपको दिखेंगे। एंड बिकॉज वाइल प्रैक्टिसिंग मैंने कुछ फॉर्म्स फिल किए थे तो वो यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं। आप कहेंगे तो मैं एक नया फॉर्म, एक नई शीट भी क्रिएट कर लूंगा। ठीक है, विच एवर you're more comfortable with। अब आपने क्या करना है, आपने एक फॉर्म क्रिएट करना है जिसके अंदर ये सारी फील्ड्स होंगी। ठीक है, एंड जब आप ये फील्ड्स ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड्स आपकी शीट के अंदर भी ऐड हो जाएंगी। और फिर इसको ऑटोमेट कैसे करना है आई एम गोइंग टू टेल यू। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिनट टू कैच अप एंड वंस यू हैव क्रिएटेड दिस फॉर्म जस्ट अपनी चैट में डन लिख दें या ओके लिख दें। ठीक है, डॉक्टर शिराज, आई होप यू विद अस एंड इस दफ़ा उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी, ये ऑटोमेटिकली शीट जनरेट होगी तो होपफुली यहाँ पे बटन का इशू नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 ये है, मैं इस दफा अभी तक तो साथ में हूँ। वंडरफुल, परफेक्ट। सो स्टेप 1 क्या है, हमने अपने ब्राउजर के डायलॉग बॉक्स में लिखना है गूगल फॉर्म्स।
वहां जाना है, जब गूगल फॉर्म्स पे चले जाए, इनफैक्ट आई एम गोइंग टू डू इट, अगेन मैं कर लेता हूँ आप लोगों के साथ साथ। ठीक है, गूगल फॉर्म्स, ठीक है, ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, यहाँ पे इसको लिखेंगे मेंटोर मीटिंग बुकिंग, या कोई भी टाइटल दे सकते हैं, डजंट रियली मैटर। पहला क्वेश्चन होगा मेंटी नेम, सेकंड क्वेश्चन होगा मेंटी ईमेल एड्रेस, तीसरा होगा नेम मेंटोर, ठीक है, जिसमें आप ड्रॉप डाउन में जाकर कोई भी नाम ऐड कर सकते हैं, दो या तीन, मैं यहाँ पे आप लोगों के ही नाम ऐड कर रहा हूँ। डॉक्टर समेरा, डॉक्टर सबा, सॉरी, ठीक है, एंड देन आई कैन ऐड लाइक डॉक्टर सुलेमान। डॉक्टर सुलेमान, डू यू हैव, आर यू विद अस? ओके, सो नेम ऑफ मेंटोर के बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ रिक्वेस्टेड, ठीक है, सिंपल, यहाँ पे शॉर्ट आंसर एम्प्टी ब्लैंक होगा, जिसमें कोई भी किसी भी फॉर्मेट में आपको डेट लिख सकते हैं, गूगल वहाँ से ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं, चाहे वर्ड्स में लिखें, डेट्स में लिखें, स्लैश डाट के लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डेट रिक्वेस्टेड एंड देन टाइम ऑफ बुकिंग, ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे चाहें तो आप एग्जैक्ट टाइम लिख सकते हैं, चाहे तो पीरियड लिख सकते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, विच एवर फॉर्मेट यूर फॉलोइंग। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9 AM, 10 AM एंड देन 11 AM, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म क्रिएट करना है आपने। फॉर्म क्रिएट करने के बाद यू हैव टू गो टू रिस्पॉन्सेज, देन यू हैव टू क्लिक ऑन लिंक टू शीट्स। वंस यू आर डन, आप एक नई शीट यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, एक नई शीट बन जाएगी, आप उस शीट को व्यू करेंगे, तो ये शीट यहाँ पे बनी हुई होगी, ठीक है। जब ये आप कर लेंगे तो आप गूगल फॉर्म्स में जाएंगे, ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे तो इसे कॉपी कर लें, एंड देन गूगल शीट में जाके चाहे तो उसी कॉन्वर्जेशन में उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या एक नई कॉन्वर्जेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं गूगल चैट के अंदर, वट एवर यू प्रेफर। मैं इसी के अंदर ही ऐड कर देता हूँ। अभी तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप चाहें तो उसको वॉइस में भी लिख सकते हैं, या आप इसको भी कह सकते हैं कि एक रेलेवेंट ऑटोमेशन खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं आपके लिए, बट बिकॉज आई हैव दिस पर्टिकुलर लेआउट इन माइंड, वर्क फ्लो इन माइंड, तो मैं यहाँ पे इसको लिख कर बता रहा हूँ, एंड आई एम रिपीटिंग, एंड यू विल ओनली बी रिक्वायर्ड टू डू दिस वंस। उसके बाद आपको ये जो है वो कम्बसम प्रोसेस नहीं करना होगा।
ओके, सो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख दी है। ठीक है, आई एम गोइंग टू एट द एंड ऑफ द वर्कशॉप में ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करके भी एक डिटेल्ड फाइल बना के विद द स्क्रिप्ट एंड द प्रॉम्प्ट्स मैं आप लोगों को भेजूंगा, सो दैट आप बाद में उसे आराम से इस्तेमाल कर सकें। ये मैं बिफोर द वर्कशॉप इसको प्रैक्टिस भी कर चुका हूँ, तो अगर आप कहेंगे टू सेव टाइम मैं आपको वो प्रॉम्प्ट्स एंड वो जो ईमेल्स रिसीव होती हैं उसके बाद वो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। सो वाइल दिस इज वर्किंग एंड राइटिंग मी स्क्रिप्ट, मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर स्टॉप करूँगा और आप लोगों को प्रेजेंटेशन में दोबारा ले जाऊँगा, जहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कौन कौन सी डिज़ायर्ड ऑटोमेशन है जो हमने करनी होंगी, और कोशिश करते हैं कि हम अपनी सेकंड ही स्क्रिप्ट के अंदर एक कंप्लीट फाइनल वर्जन अपना प्रेजेंट करें। ठीक है, तो शेयर स्क्रीन अगेन टू माय प्रेजेंटेशन। ठीक है, ओके। सो हमारा सेकंड यूज केस था कि जिसके अंदर हम बुक कर रहे थे कोई भी मीटिंग रूम हो एक्सेट्रा, या हमारी फॉर एग्जांपल कोई मीटिंग हो विद एन अपॉइंट अ मेंटोर और विद हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक्सेट्रा। तो पहला हमारी ऑटोमेशन क्या होगी, जिसमें हमें एक ये सिस्टम क्रिएट करेंगे जिसमें अगर कोई भी उस टाइम पे बुक करता है तो उसको ऑटोमेटिकली एक ईमेल चली जाएगी कि बुकिंग सक्सेसफुल है। एंड इफ इन केस कोई ऐसे टाइम पे बुक करने की कोशिश करता है जिसमें अ पर्सन हैज़ ऑलरेडी मेड अ बुकिंग, तो उसको एक ईमेल चल जाएगी कि योर रिक्वेस्ट हैज बीन डिक्लाइन एंड देन यू हैव टू स्केड्यूल एट अ डिफरेंट टाइम विद अ डिफरेंट वेंडर। ठीक है, एंड मैं आप लोगों को अब दिखाता हूँ कि ये क्रिएट हो गया होगा अभी तक जेमिनी में। ओके, ओके। तो स्क्रिप्ट एक जनरेट हो गई है एंड इट इज आस्किंग मी टू जस्ट चेक के सारे जो है वो यहाँ पे कॉलम्स ठीक हैं या नहीं, एंड कॉलम्स सारे ठीक हैं हमारे। मैं वापस से वही प्रोसेस रिपीट करूँगा। मैं एक्सटेंशंस में जाऊँगा, गूगल ऐप स्क्रिप्ट में जाऊँगा, मैं वहाँ जाकर अपनी स्क्रिप्ट को पेस्ट करूँगा। ठीक है, कंट्रोल ए कंट्रोल वी, मैं एक दफ़ा जाकर से सेव करूँगा। ठीक है, एक दफ़ा उसे रन करूँगा। इफ़ इट आस्क्स मी फॉर अ परमिशन तो मैं वो परमिशन ग्रांट करूँगा। इफ़ इन केस अगर वो पॉपअप ब्लॉक करता है तो उसको कैसे हमने करना है वो भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, सॉरी विल हैव टू डू इट अगेन। ओके, एडवांस में जाएंगे, गो टू अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट में जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ तो वो एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट कह रहा है उसे। ठीक है, सिलेक्ट और करके मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अगेन दिस इज अ वेरी सेफ प्रोसेस, यू योर सेल्फ आर राइटिंग द कोड, यू योर सेल्फ आर राइटिंग द स्क्रिप्ट, तो उसमें कुछ ख़राब नहीं हो सकता है। एंड हमने यहाँ पर इसे एग्जीक्यूट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अपनी शीट में जाएंगे। ठीक है, और अपनी गूगल फॉर्म में जाकर ये फॉर्म मैं आप लोगों को भेज देता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं खुद ही फेक कुछ फॉर्म्स फिल कर लेता हूँ। ठीक है, आप ही के ईमेल एड्रेस से कॉपी, लेट्स फिल द फॉर्म। एक दफ़ा हम मीटिंग बुक करते हैं, द मीटिंग इज बीइंग बुक बाय लेट्स से अमजद, द ईमेल एड्रेस इज आई पुट इन माय ईमेल एड्रेस जस्ट फॉर द पर्पस कि मैं आप लोग को दिखा सकूं। मेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्टर सुमेरा, डेट रिक्वेस्ट कर लेते हैं Feb 01 2026। ठीक है, टाइम हम चूज कर लेते हैं 9 बजे का और सबमिट। ठीक है, तो अब जैसे ही ये आता है, ठीक है, ऑटोमेटिकली उस बंदे को ईमेल चली जाएगी, और हम चाहें तो इसे ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे, जस्ट मेक श्योर करेंगे कि कोई फ्लॉ नहीं हो बाय चेकिंग ऑन द ट्रिगर, ऐड ट्रिगर। ठीक है, चूज विच फंक्शन टू रन। ठीक है, सेंड कंफर्मेशन ईमेल। ठीक है, Multiplicity of lesions usually seen in malignancy. However, these are usually solitary or few in lymphoma.
अब आपका माइक ऑन है। मैंने थैंक यू सो मच। तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर सेव कर दिया है कि ऑटोमेटिकली जैसे ही कोई बंदा जो है वो फॉर्म फिल करेगा, तो मेरी किसी इंटरवेंशन के बगैर उसे कंफर्मेशन या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एंटी रिट्रोवायरल रिप्लाई थेरेपी टू डिक्लाइन जो है वो चली जाएगी। इन्वॉल्विंग ऑन रेडियोलॉजी। ठीक है, कंफर्मेशन ईमेल के लिए भी, और एक और ट्रिगर ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे डिक्लाइन के लिए भी। ठीक है, ऑन फॉर्म सबमिट, सेव। ठीक है, अब ऐसे कुछ दो तीन फेक फॉर्म सबमिट कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट एज एन एग्जांपल, ए ईमेल एड्रेस है educator.mani@gmail.com। ठीक है, मेंटोर चूज कर लेते हैं डॉक्टर सुमेरा। डेट रिक्वेस्ट करते हैं Feb 01 2026। टाइम चूज करते हैं 10 बजे का। ठीक है, सबमिट कर लेते हैं, और एक और स्टूडेंट की तरफ से फॉर्म सबमिट करते हैं जिसका नाम एनीथिंग रैंडम। ठीक है, इसकी ईमेल एड्रेस लिख देते हैं edu.unlimit@gmail.com। ठीक है, ये भी डॉक्टर सुमेरा के साथ बुकिंग कर रहे हैं। इनकी भी सेम डेट है Feb 1 2026। मैं सेम डेट इसलिए रख रहा हूँ सो दैट आप लोग देख सकें कि एक्सेप्टेंस की ईमेल कैसी आएगी और डिक्लाइन की ईमेल कैसी आएगी। ठीक है, अब ये फॉर्म सबमिट हो गया। अब हमने कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, हमने सिर्फ यहाँ जाना है। ठीक है, रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आपको, रिफ्रेश करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये ईमेल्स जो हैं उन लोगों को चली जाएंगी। ठीक है, मेंटरशिप सिस्टम पे आएंगे, इनिशियलाइज कर देंगे सिर्फ एक दफ़ा। ठीक है, ओके। ठीक है, जस्ट इन केस कि अगर पहले कोई नहीं गया है तो ठीक है। मेरा एंड टाइम चूज कर लिया 9 बजे का सबमिट। अब हम जाएंगे एंड देखेंगे कि क्या हमें वो ईमेल्स जो हैं वो रिसीव हुई हैं या नहीं। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो हमें साथ साथ बताता जा रहा है कि किस किस ने ईमेल की है और किस किस की रिक्वेस्ट जो है डिक्लाइन हो गई है, बिकॉज दे बुकड एट द सेम टाइम जिस पे पहले बुक हुआ हुआ था, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जो उनकी डिक्लाइन हो गई है। आई एम गोइंग टू ओपन माई ईमेल एड्रेस एंड शो यू कि मुझे किस तरह की ईमेल आई होगी। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बुकिंग की थी तो मुझे यहाँ पे एक ईमेल रिसीव हुई है। डियर, बिकॉज आई टाइप द नेम FF, तो FF है, थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट, अनफॉर्चुनेटली द अपॉइंटेड टाइम स्लॉट यू सिलेक्ट इज ऑलरेडी बुक बाय अनदर मेंटी। ठीक है, और अब हम कोई नया टाइम बुक करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से वो ईमेल हमें आती है इफ़ आवर बुकिंग इज सक्सेसफुल। सो हम नाम रख लेते हैं यहाँ पे, शिराज बुक कर रहे हैं gmail.com। ओके, अब हम नया मेंटर सेलेक्ट करें डॉक्टर सबा। टाइम अगेन Feb 01 2026 लिख सकते हैं, कोई भी टाइम लिख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, एंड चूज करेंगे यहाँ पे 10 बजे का टाइम, सबमिट। ठीक है, एंड देन आप देखेंगे यहाँ पे कि कंफर्म हो गया है एक अपॉइंटमेंट डॉक्टर सबा के लिए। एंड अगर आप जाएंगे अपने ईमेल एड्रेस में दोबारा, तो यू विल सी दैट पर्सन वुड हैव रिसीव्ड एन ईमेल स्टेटिंग कि उनका अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है। ठीक है, देखें ये अपॉइंटमेंट यहाँ पे कंफर्म हो गया है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो आपको यहाँ पे गूगल स्क्रिप्ट के अंदर आप लिख लें कि वो एक गूगल कैलेंडर में मीटिंग भी कंफर्म कर दे। तो एवरी टाइम अगर सेशन इज़ कंफर्म तो एक लिंक भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा, उस स्टूडेंट को भी इनविटेशन चली जाएगी एंड उस फैकल्टी मेंबर को भी चली जाएगी, स्टेटिंग के देखें आपकी अपॉइंटमेंट है, इस दिन है, इस तारीख पे है, इस स्टूडेंट के साथ है, एंड सो दैट वी कैन बी रेडी के ठीक से वो मीटिंग जो है वो मिस ना हो। एंड अगर आप चाहेंगे, ठीक है, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं इन सच अ मैनर के
at the start of every morning, the mentor gets an email stating उनकी आज कितनी मीटिंग्स बुकड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ईमेल आई है मेरे पास, इसमें मुझे बताया जा रहा है कि टोटल रिक्वेस्ट मेरे पास 6 आई थी, जिसमें से 2 स्केड्यूल हुई हैं, 4 जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट थे, यानी सेम टाइम पे बुक करना चाहते थे तो वो रिजेक्ट हो गई हैं। दीज वर द पीपल हु वर ट्राइंग टू बुक अ मीटिंग विद मी। ठीक है, 2 रिजेक्ट हुए हैं, 2 कंफर्म हुए हैं, एंड सुबह ही सुबह आपको वो मीटिंग चली जाएगी, या जो भी पर्टिकुलर टाइम आप चाहें सेंड करने का, या अगर आप चाहें तो एक बटन बना सकते हैं वहाँ पे सेंड वीकली मेंटरशिप समरी के नाम से, तो आपको चला जाएगा। आई होप यू ऑल आर यू नो फॉलोइंग मी, एंड देन कोई लॉस्ट नहीं हुआ है, एंड देन एवरीबडी जो मैं टास्क परफॉर्म कर रहा हूँ उसे रिपीट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं रिपीट करूंगा कि देखिए, मैं आपको सिर्फ एक स्किल सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपने अपने टास्क को ऑटोमेट करना है, कौन से टास्क आप ऑटोमेट करना चाहते हैं। ये इंडिविजुअल यूज केसेस वो हैं जो आपको खुद इमेजिन करने होंगे, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वर्क यू परफॉर्म एंड हाउ बैडली यू नीड देम ऑटोमेटेड, तो वो चला जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं कि सिंपली कितना कम्बरसम प्रोसेस होगा कि अगर इफ़ यू आर रनिंग अ मेंटरशिप सेशन, और इफ़ यू आर रनिंग अ प्राइवेट क्लिनिक फॉर इंस्टेंस, तो आपने सिर्फ यहाँ पे करना है कि गूगल फॉर्म बनाना है, उसको लाइव करना है, लोग पूरा दिन खुद ही उसमें बुकिंग्स करेंगे, एंड एआई रीड करके कि कौन से टाइम्स जो हैं वो यूनिक हैं, उनमें वो कंफर्मेशन की उन्हें भी ईमेल भेज देगा, आपको एक अपडेट दे देगा एट द एंड ऑफ द डे कि नेक्स्ट डे के लिए आपके कितने अपॉइंटमेंट्स बुक हैं, किस किस यूनिक टाइम पे, एंड अगर कोई कन्फ्लिक्टिंग टाइम पे बुक करने की कोशिश करेगा तो उसे एक डिक्लाइन की ईमेल चली जाएगी कि सॉरी, दैट टाइम इज ऑलरेडी बुक्ड, यू हैव टू बुक एट अ डिफरेंट टाइम विद अ डिफरेंट क्लिनिशियन। फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल एंड नॉट अ कॉलेज, तो आप मल्टीपल क्लिनिशियंस के नाम वहाँ लिख सकते हैं, एंड आपका पूरे ओपीडी का सिस्टम जो है वो यहाँ पे ऑटोमेट हो जाएगा। लोग खुद ही आएंगे, अपने टाइम पे बुकिंग करेंगे डिफरेंट कंसल्टेंट के साथ, डिफरेंट टाइम पे उनको कन्फर्मेशन मिलेंगी, आपके कंसल्टेंट को ईमेल चली जाएगी कि आज के दिन में उनके कितने अपॉइंटमेंट्स हैं जो लोगों ने पहले से बुक किए हुए हैं। और इस तरीके से आप अपना पूरा ओपीडी का सिस्टम हो, या आपकी अपनी मीटिंग्स हो विद योर एम्प्लॉयज़, या आप एक मेंटर हो और आपकी मीटिंग्स हो विद योर मेंटीज, तो वो सारा सिस्टम आप ऑटोमेट कर सकते हैं। सो एनी पॉइंट्स दैट एनीबडी वुड लाइक टू ऐड एट दिस पॉइंट? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? डॉक्टर शिराज, आर यू फॉलोइंग अलोंग? इस दफ़ा क्या कोई बटन ऐड हुआ है आपके लिए, या आर यू फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स? डॉक्टर मुनीर, मुझे प्लीज ट्रिगर वाला दोबारा एक दफा डेमोन्स्ट्रेट कर दें, क्योंकि मैं वहां पे स्टक हूँ श्योर अबाउट द मैम, फंक्शनैलिटी। नो प्रॉब्लम एट ऑल। मैं एक्सटेंशंस में जाऊंगा, ठीक है, ऐप स्क्रिप्ट पे जाऊंगा, ठीक है। दिख रही है आपकी स्क्रीन पे, शो हो रहा है मैम? जी जी, इट्स विजिबल। और जब हम स्क्रिप्ट पेस्ट करते थे ना, तो वो यहाँ पे कोड जीएस में पेस्ट करते थे, कोड डॉट गूगल स्क्रिप्ट में। हमने जो ट्रिगर डाला है वो यहाँ है, जो अलार्म क्लॉक बनी है ना मैडम, उस पर क्लिक राइट। करेंगे ठीक ठीक। तो आपको बॉटम राइट कॉर्नर पे लिखा हुआ ऐड ट्रिगर, ठीक है। सही। ऐड ट्रिगर पे जाकर आप जो भी ट्रिगर यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, ये वो वाली फाइल है जिसमें फैकल्टी ईमेल्स, रिमाइंडर्स एक्सेट्रा थे, तो वहाँ पे ट्रिगर की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पे जैसे ही लोग फॉर एग्जांपल हम बटन क्लिक करते थे, लोगों को ऑटोमेटिकली ईमेल्स जा रही थी। बट जैसे जो मैंने सेकंड एग्जांपल दिया है ओपीडी बुकिंग्स का, या आपकी मेंटी के साथ मीटिंग की बुकिंग्स का, तो वहाँ पे वो शो करेगा कि भाई आपने कन्फर्मेशन कब भेजनी है। इनफैक्ट मैं वही फाइल आपको खोल के दिखा देता हूँ ना, तो इट विल बी सिंपलर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक्सटेंशंस में जाएंगे, ऐप स्क्रिप्ट में जाएंगे, ट्रिगर में जाएंगे, 2 ट्रिगर्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेटेड है फिर भी, लेकिन एक ऐड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगा, देखें, प्रोसेस फॉर्म सबमिशन, सेंड कंफर्मेशन, सेंड डिक्लाइन। तो मैं यहाँ पे सेंड कंफर्मेशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं टाइम क्या सेलेक्ट करूँगा, इवेंट के ऑन फॉर्म सबमिट के, जैसे ही जब कोई फॉर्म सबमिट करता है, तो अगर वो टाइम स्लॉट वेकेंट है तो उसको ईमेल चली जाए, अगर वो नहीं है तो उसको ठीक अगर टाइम पे चली जाएगी, ठीक है। आप चाहें ठीक। तो ऑन ओपन भी कर सकती हैं कि जब आप ओपन करें अपना शीट तब आपके पास आ जाए एक्सेट्रा, तो वो आप उसको कस्टमाइज कर सकती हैं। एंड क्योंकि सोर्स ऑफ डेटा हमारी यहाँ पे हमारी स्प्रेडशीट है, तो हम यहाँ स्प्रेडशीट से ले रहे हैं। चाहें तो फ्रॉम कैलेंडर भी कर सकते हैं कि जो लोग एक्चुअली फिर जाके फॉलो थ्रू करेंगे उस इनविटेशन को, कैलेंडर में एक्सेप्ट करेंगे, तो उनको फिर ईमेल्स जाएंगी। बट मैं यहाँ पे सिर्फ उसको ऑन स्प्रेडशीट करूँ कि जो भी फॉर्म भरेगा तो ऑटोमेटिकली इसका डेटा जो है वो स्प्रेडशीट में आएगा ही ना, और वहां से वो अच्छा, देख कर। इसमें मैं ये भी डाल सकती हूँ कि ऑटोमेटिकली मेंटोर को भी ईमेल चले जाए कि आपकी बुकिंग हो गई है। बिल्कुल मैम, ऐसे ही कर सकती हैं। ठीक इनफैक्ट है। जाती हैं ईमेल्स, मैं आपको दिखा देता हूँ सैम्पल उसका। आई थिंक आई हैव इट। ओके, वीकली मेंटरशिप समरी ना, देखें जैसे ये नजर आ रही है, मेंटोर को एक ईमेल चली जाएगी कि भाई आपकी बुकिंग हो गई है, डॉक्टर अक्सा के नाम पे ईमेल आई है कि आपके मेंटी जिसका नाम ए है, वो इस टाइम पे और इस दिन पे आपके साथ बुक्ड हो गए हैं, और कैलेंडर इनवाइट उनको अलग से भेज दिया गया है, और इस तरह से कैलेंडर इनवाइट भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ,
ठीक है। एंड चाहेंगे तो एक समरी भी आपके पास आ जाएगी कि इस हफ्ते में आपकी कितनी बुकिंग्स हैं, किस किस के साथ, किस दिन पे, किस टाइम पे। तो आपको पता चल जाएगा ना, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट रिजेक्ट जो हुई होंगी वो देख लेंगे आप चाहें तो प्रेफरेंस भी ऐड कर सकती हैं लोगों के लिए कि एक पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस मेंशन कर सकती हैं कि अगर इस एड्रेस से कोई बुकिंग करता है तो उसको ज़रूर वो स्लॉट दिया जाए। If in case you have a mentee who is in more stricter need of mentorship sessions, तो उसको आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं, वो लॉजिक आप ऐड कर सकते हैं अपनी हाँ, स्क्रिप्ट के वो अंदर। मैं सोच रही थी कि अगर हम ये इस तरह का कोई हमें स्टूडेंट के साथ लिंकेज हो जाए ना, उसकी परफॉर्मेंस या उसकी अटेंडेंस, सो दैट वी कैन प्रायोरिटाइज। मैं बिल्कुल यही सोच रही थी कि उसको हम एक टैब डालना पड़ेगा। ईमेल एड्रेस डाल दें आप उसका अपनी हम्म। जेमिनाई में प्रॉम्प्ट के दौरान कि भाई ये हम्म। है जिसको हम रिजेक्ट नहीं करना चाहते हैं ना एट एनी कॉस्ट। तो फिर अगर वो बाद में भी कोई बुकिंग करेगा और स्लॉट बुक भी होगा तो वो स्लॉट कैंसिल हो जाएगा और उसको वो स्लॉट मिल जाएगा। इफ़ कोई स्पेशल नीड्स वाला चाइल्ड हो या जिसको ज़्यादा ज़रूरत है, जिसको ज़्यादा आप रिव्यू की ज़रूरत है ऑन देयर परफॉर्मेंस, तो वो आप प्रायोरिटाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। एक थर्ड यूज़ केस है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ठीक है। So I'm going to go back to my presentation. Again मैं रिपीट करूंगा कि I can only give you wings. You have to decide where you want to fly off to. तो आप उस स्किल को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, किस चीज़ में ऑटोमेशन लाना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। थर्ड यूज केस जो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है वो ये है कि असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल अक्सर हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू स्टूडेंट्स से क्विज कर रहे होते हैं। ठीक है। एंड हमारे पास एवरीबडी नोज हाउ टू मेक अ गूगल फॉर्म एंड टर्न इट इनटू अ क्विज। अगर किसी को प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी करके भी दिखा दूंगा उसे। एंड देन रिजल्ट्स आता है हमारे पास शीट्स की फॉर्म में ना। हमारे पास लिखा होता है कि स्टूडेंट कितने मार्क्स है, स्टूडेंट कितने मार्क्स है। बट अगर हमने वो रिजल्ट किसी को फॉरवर्ड करना है, फॉर एग्जाम्पल अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, तो अच्छा नहीं लगता कि हम वो डायरेक्टली शीट फॉरवर्ड कर दें या उसका कोई स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड कर दें। तो हम वहाँ पे जाके गूगल स्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हैं, जिसके थ्रू एवरी टाइम वी क्लिक ऑन द बटन। मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है। सो एवरी टाइम वी क्लिक ऑन द बटन ऑफ, लेट्स से, कहाँ गया शीट। ठीक है। ठीक है, जैसे मैंने एक ये शीट क्रिएट की थी, क्विज 11, सॉरी ये नहीं, क्विज 11। जैसे मैंने ये सिंपल शीट क्रिएट की थी एक फॉर्म के साथ। मैं फॉर्म भी दिखा देता हूँ आपको वो। आई एम जस्ट शोइंग यू रेडीमेड स्टफ सो दैट टाइम थोड़ा सा बच जाए आप लोगों का। कहेंगे तो मैं फॉर्म दोबारा से भी क्रिएट करके दिखा दूंगा। मैंने एक सिंपल सा गूगल फॉर्म क्रिएट किया, ठीक है, क्विज 11 के नाम से। और उसमें नेम ऐड किया, स्टूडेंट आईडी ऐड की। ठीक है। मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप ये नेम और आईडी कर रहे हैं तो वहाँ पे स्कोर पॉइंट 0 हो, ताकि इसकी कोई ग्रेडिंग ना करने लग जाए वो। ठीक है। नेम, स्टूडेंट आईडी एंड देन पे 3 सवाल रखें सिर्फ। आप 10, 12, 15, 100 कितने भी सवाल रख सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द करेंसी ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाट इज द डेट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। एंड नाउ एवरी टाइम अ स्टूडेंट अटेम्प्ट्स इट, तो वो डेटा कहाँ जाता है, वो इस शीट के अंदर आता है। ठीक है। और अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं, वो ये शीट भेज रहे होते हैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स को, चाहे वो स्क्रीनशॉट की फॉर्म में हो या उसे एक्सेस ग्रांट कर रहे हो सकते हैं, और इट डजंट रियली लुक वेरी प्रोफेशनल। तो हम वो स्क्रिप्ट जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे एक बटन ऐड हो जाएगा सेंड रिपोर्ट टू चेयर के नाम से। एंड व्हेन वी क्लिक ऑन दैट, तो आपकी पूरी एक रिपोर्ट ऑटोमेटिकली ईमेल हो जाएगी। लेट्स गो बैक टू द ईमेल एड्रेस। ठीक है, रिपोर्ट आ गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि एक नीटली समराइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिजल्ट है, जिसके अंदर बता रहे हैं कि कितने स्टूडेंट्स पे जो है उन्होंने अटेम्प्ट किया था क्विज को, कितने लोग फेल हुए हैं, 0 हैव फेल्ड, 3 हैव पास्ड। ठीक है। एंड ये उनका डिटेल लॉग्ड है, देख सकते हैं, वेरी नीटली प्रेजेंटेड। स्टूडेंट नंबर 1 वाज अशर, उसने जो है वो 6 स्कोर अचीव किया है आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 6। ठीक है। परसेंटेज, क्योंकि मैंने वहाँ पे स्क्रिप्ट में बताया नहीं है कि टोटल स्कोर कितना था, तो इसलिए यहाँ पे ये NaN लिख रहा है। अगर मैं स्क्रिप्ट में ऐड कर दूंगा ये टोटल स्कोर क्या था, तो यहाँ पे परसेंटेज भी आ जाएगी। तो यहाँ पे पास हैं तीनों। एंड बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट के अंदर ये बोला था कि आई ऑल्सो वांट एन आइटम एनालिसिस डन ऑफ द इंटायर क्विज, उनके क्वेश्चंस का भी और उनके हर आइटम के ऑप्शंस का भी, तो उसने डिटेल में यहाँ पे एक नीचे आइटम एनालिसिस भी मेरे हेड को भेज दिया है, चेयर को, कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें इस्लामाबाद सेलेक्ट किया है 66 लोगों ने, कराची सेलेक्ट किया है 33 लोगों ने। ठीक है। एंड क्योंकि ये बहुत कम नंबर्स हैं, इट्स नॉट सफिशिएंट टू एक्चुअली जनरेट एनी प्रॉपर इंसाइट्स ऑन आइटम एनालिसिस। अगर एटलीस्ट 30 या एटलीस्ट 10
भी स्टूडेंट्स होते तो देन इट वुड हैव बीन एबल टू कम अप विद क्रॉनबैक अल्फा फिगर, या जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक लिखा हुआ है एआई रिकमेंडेशंस, नो मेजर इश्यूज डिटेक्टेड। तो तब अगर आप कोई ऐसा डिस्ट्रैक्टर होगा जिसको कोई भी सिलेक्ट नहीं करा होगा, तो वो यहाँ पे से पॉइंट आउट कर देगा। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसे हर कोई ठीक कर रहा होगा या हर कोई गलत कर रहा होगा, तो वो बता देगा कि भाई इसका पॉइंट बाय सीरियल जो है वो इतना है, इसकी जो है वो डिफिकल्टी इंडेक्स इतनी आ रही है। इट्स गोइंग टू डू दैट फॉर यू। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट टाइप इट इन द स्क्रिप्ट, टाइप एज अ प्रॉम्प्ट इन गूगल जेमिनी। मैं वो प्रॉम्प्ट भी आपको दिखा देता हूँ इनफैक्ट, जो मैंने यहाँ पे टाइप की थी, एंड मैं आप लोगों को भेज भी दूंगा, ठीक है। सो व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर दिस वर्कशॉप, दिस वाज द स्टेप आई वाज यूजिंग, ठीक है। ठीक है, देखिए मैंने ये प्रॉम्प्ट दी थी उसे, ठीक है। मैंने सिर्फ रैंडम से पूछा कि क्या मैं ऐड कर सकता हूँ फीचर जिसके अंदर आइटम एनालिसिस हो विद रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग विच क्वेश्चंस टू डिस्कार्ड एक्सेट्रा, विच ऑप्शंस टू रिप्लेस। तो उसने वो स्क्रिप्ट यहाँ पे बना दी थी और मैंने वो यहाँ पे कॉपी करके उसमें जाके पेस्ट किया है, ठीक है। और क्योंकि देयर जस्ट 3 स्टूडेंट्स हु रिप्लाइड, वो मैंने ही फेक रिप्लाईज लिखे हैं, तो इसलिए देर इज लिमिटेड आइटम एनालिसिस डन। बट अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे, एटलीस्ट 10-12 होंगे, तो देन यू विल गेट अ मोर डिटेल्ड रिपोर्ट। सो आप देख सकते हैं कि किस तरह वट ऑल द लिमिटेशन दैट यू हैव इज योर इमेजिनेशन। जो जो आप सोच सकते हैं, इवन आप देखें, मैंने उससे ये भी पूछा कि इंस्टेड ऑफ द हैविंग टू ईमेल माय हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्या मैं उसे व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ ये पीडीएफ। तो द आंसर वाज यस, देयर आर सर्टेन सर्वर्स अवेलेबल जिनको आपने सिर्फ उनकी एपीआई कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करनी है। तो इंस्टेड ऑफ द रेगुलर ईमेल गोइंग आउट टू योर हेड ऑफ डिपार्टमेंट और टू योर फैकल्टी, चाहे वो रिमाइंडर्स की हो या इन्विटेशन की हो, तो व्हाट्सएप बिजनेस का एपीआई कॉपी करके पेस्ट करना है आपकी सिंपल, जहाँ पे लिंक डिवाइसेस आती है ना, वहीं से कॉपी होता है। तो वो पेस्ट कर दें तो नेक्स्ट टाइम आपकी ईमेल नहीं जाएगी, आपका व्हाट्सएप मैसेज जाएगा वहाँ पे। So I hope you guys are following and understanding के how useful this is if you want to automate your tasks, चाहे वो असेसमेंट के हों, चाहे वो बुकिंग्स के हों, चाहे वो ईमेल रिमाइंडर्स के हों, किसी भी तरह के हों। फॉर एग्जांपल जैसे आई यूजुअली ऑफर वर्कशॉप्स, तो मैं गूगल फॉर्म्स के थ्रू जो है रिक्वेस्ट रिसीव करता हूँ लोगों की ना। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि बिकॉज आई एम बिजी, मैं कन्फर्मेशन नहीं भेज पाता लोगों को। तो पीपल देन दे ईमेल मी और मैसेज मी आफ्टर अ डे कि हमारे पास कंफर्मेशन नहीं आई, ईमेल आई। तो मैं सिंपली वो स्क्रिप्ट जाके ऐड कर सकता हूँ अपने गूगल फॉर्म के पेज पे। फिर जा फिर जाकर एक स्क्रिप्ट ऐड कर सकता हूँ गूगल फॉर्म के अंदर कि एवरी टाइम अ पर्सन हैज़ रजिस्टर्ड फॉर द वर्कशॉप, तो उसको एक कस्टमाइज्ड ईमेल चली जाए विद देयर नेम कंफर्मिंग दैट यस दे हैव बीन रजिस्टर्ड टू दैट पर्टिकुलर वर्कशॉप। तो फिर आई वुडंट हैव टू गो थ्रू द हैसल ऑफ हैविंग टू मैनुअली डू दैट ईमेल। Anything that anyone would like to add at this point? अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ तो माजरत, if you want me to repeat anything I'd be happy to do it. If you want me to experiment with a different use case जो आपके दिमाग में है, तो I would love to do that. Dr. Shiraz, Dr. Noori, Dr. Sumaira, Dr. Sabah, anyone who has anything to say, I would be happy to help. मुनीर, थैंक यू। मैं आई एम जस्ट अस्सलाम ट्राइंग टू वालेकुम। अंडरस्टैंड दी ओवरऑल पिक्चर। तो आई थिंक सो कि हम जब अपने खुद अपनी पेस पे इसको प्रैक्टिस करेंगे ना विद द इंफॉर्मेशन दैट यू प्रोवाइड, आई थिंक सो मोस्ट वो वैल्यूबल होगा कि जिसके अंदर हम अपने डेटा सेट डालें, अपनी क्यूरीज को खुद करें। बट ब्रॉडर एस्पेक्ट जो मुझे अभी तक जो समझ आए इसके अंदर, यूजिंग गूगल शीट्स को यूज एंड गूगल फॉर्म्स को लिंक करते हुए आप कैसे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोड जनरेट करें और उनको कस्टमाइज करके यू कैन मूव फॉरवर्ड विद ऑटोमेशन। दिस इज अभी जो ओवरऑल ग्राफ जो मुझे फंडामेंटली समझ आया वो ये समझ आया इस पे। Do you think कि एप्लीकेबिलिटी कोई है? फॉर एग्जांपल जैसे यू रन योर ओन क्लिनिक, तो अगर आप किसी गूगल फॉर्म के थ्रू अपना एक अपॉइंटमेंट सिस्टम यहाँ पे जनरेट करते हैं, एंड देन पीपल गेट ईमेल्स एंड देन यू गेट डिटेल्स के नेक्स्ट डे आपके कितने अपॉइंटमेंट्स होंगे, डू यू थिंक दैट वुड हेल्प यू एज एन ऑटोमेशन? हाँ, डेफिनेटली वो हेल्प करेगा। और जाहिर सी बात है कि हम लोग के यहाँ कुछ सिस्टम्स ऑलरेडी इन प्लेस बने हुए होते हैं हमारे अपने हॉस्पिटल्स के अंदर। दे इनमें से कुछ ऐसे ही काम हैं जो आई थिंक सो के जो बिजी क्लिनिशियंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं तो वो उनका इसमें सेक्रेटेरियल वर्क भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो ये आई थिंक सो इनके लिए द मोस्ट फ्रूटफुल उन फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी हैं या उन प्लेसेस में हैं जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेस का इशू है। फॉर एग्जांपल शेयर्ड सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं एंड दे कांट, और एक एक सेक्रेटरी के पास काम का जो है वो अंबार लगा हुआ होता है। तो इफ़ वी नो आवर सेल्फ तो हम बहुत सारा काम तो खुद कर सकते हैं, वरना वी कैन ट्रेन आवर सेक्रेटरीज के जी के इस तरीके से कर लो तो वो वेरियस डिपार्टमेंट्स की नीड्स को साइमल्टेनियसली जो है वो उसको देख सकता है। दिस इज़ आई बिलीव कि आई थिंक सो इसका एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है।
हाँ, एंड आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस अप बिकॉज हम एज अ फॉलो अप वर्कशॉप हम ये भी ऑफर करना चाह रहे थे कि मोस्ट ऑफ दिस वर्क हम चाहेंगे कि हमारा स्टाफ भी हैंडल कर सके, तो वी विल बी ऑफरिंग अ वर्कशॉप इन द फ्यूचर फॉर योर असिस्टेंट्स और फॉर योर स्टाफ, कि अगर वो ट्रेन होना चाहते हैं तो हम उनको सर्टेन यूज केसेस एंड बेसिक्स ऑफ वाइब कोडिंग एंड ऐप स्क्रिप्ट यूज में हम उनको ट्रेन कर सकते हैं एट अ वेरी लो एंड कस्टमाइज रेट, सो दैट आपको आगे जाकर उन लोगों को भी ट्रेन कर लें, सो कैपेसिटी बिल्डिंग भी होती है एंड देन आपको ही बाद में जाके फ़ायदा होता है उसका भी। बल्कि आई थिंक सो कि यू कैन ऑफर दिस एज इंस्टीट्यूट लेवल। आई विल सी इफ वी कैन फाइंड अ वे इन आवर इंस्टीट्यूट एज वेल कि हमारे यहाँ पे एटलीस्ट फैकल्टी एंड सेक्रेटरीज लेवल की दो अलग अलग लेवल्स की ट्रेनिंग हो जाए। तो आई थिंक सो इट विल बी अ वंडरफुल थिंग इंशाल्लाह। Happy to explore this option in the future. Okay, so anybody else who'd like to voice their opinions about it or would like me to experiment with another use case, so I'd be happy to do it for them. Yeah, Assalamualaikum. I have just joined the session. I missed the entire session. Could you please repeat some major steps? बिल्कुल, मैं रिपीट कर देता हूँ मेजर स्टेप्स। आई जस्ट लाइक टू टेक अ फ्यू मोर ओपिनियंस एंड देन वर्कशॉप क्लोज करने से पहले मैं आपके लिए एक रिकैप कर दूंगा हमारे एक यूज़ केस का, सो दैट यू डोंट मिस एनीथिंग। एंड आपको वर्कशॉप के बाद एक ईमेल भी रिसीव होगी जिसके अंदर वीडियो भी होगी इस वर्कशॉप की, सारे प्रॉम्प्ट्स भी होंगे जो हमने इस्तेमाल किए हैं इन अ रिफाइंड मैनर, एंड सारी स्क्रिप्ट्स भी होंगी, तो आप वहाँ से भी उसे कैचअप कर सकती हैं। Dr. Sabha says, I agree with him. Yes, sure. I'd be happy to coordinate with you as well for this डॉक्टर problem. मुनीब, एक सजेशन है प्लीज। मैम हुक्म करें। जस्ट मेरा ख्याल है आई एम अ बिट स्लोअर इन आईटी। मैंने आपकी वो जो पहले ईमेल वाली थी वो कैच कर ली, बट दैट वाज टू लेट। आई टुक सम टाइम टू लर्न दैट। लेकिन ऑब्वियसली ये बार बार लर्निंग प्रोसीजर है कि ज़ाहिर 3-4 दफ़ा जैसे सर ने कहा कि हम प्रैक्टिस करेंगे अपने टाइम में, तो फिर हमें इसका हो जाएगा। तो देर वुड बी एनी व्हाट्सएप ग्रुप और हाउ वी वुड बी कनेक्टेड टू यू कि हम इसको अगर थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, प्रैक्टिस करें, और हमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है तो हम आपसे हेल्प ले सकें इन 2 केसेस पे प्लीज। मैम बिल्कुल, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। यूजली आई मेक ग्रुप्स फॉर वर्कशॉप्स, लेकिन इस दफ़ा बनाया नहीं था, कहेंगी तो मैं बना दूंगा, बट अगर आप चाहें तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच मी एंड या ईमेल कर सकती हैं मुझे। आई एम ऑल्सो शेयरिंग माई ईमेल एड्रेस। So we can ask you again and again on these 2 cases if you don't mind. आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ये Thank कहीं you so भागेगा नहीं, इसको हम कहीं भी पकड़ सकते हैं, आप परेशान नहीं है। नहीं तो भाग के कहीं नहीं भाग सकता। Okay, so with this, I think we've come to a conclusion, and जैसे मैंने promise किया था कि at the end I'm going to offer another interesting tidbit as well, कि किस तरह आप अपनी administrative processes या आपके जो professional functions होते हैं उनको और बेहतर बना सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर अनदर एग्जाम्पल विद यू कि किस तरह आप जो अपनी ईमेल्स रेगुलर भेजते हैं ना उनको और बेहतर बना सकते हैं। यूजुअली क्या होता है कि व्हेनेवर वी हैव टू सेंड एन ईमेल टू समबडी, हम सिंपली जाएंगे उसके अंदर टेक्स्ट राइट करेंगे और उसको भेज देंगे। डिफरेंट कलर्स ऐड करने हों, ग्राफ्स ऐड करने हों या कोई फिगर्स ऐड करनी हो तो हर चीज़ को पेस्ट करना पड़ता है, कॉपी करना पड़ता है। वो सारा काम भी आप ऐप स्क्रिप्ट या सिंपल अपनी जेमिनाई की प्रॉम्प्ट के थ्रू कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गो टू जेमिनाई or to ChatGPT, whichever large language model you're using, and then you have to tell it के अपनी ईमेल का टेक्स्ट दे दें उसे कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आप लोग को एक एग्जांपल शो कर देता हूँ। ओके, अच्छा, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ अपनी ईमेल आईडी शेयर कर रहा हूँ। एंड यूजुअल जो ईमेल्स होती हैं हमारी काफ़ी डल होती हैं, बोरिंग होती हैं, हम इस तरह की ईमेल्स कर रहे होते हैं, यू जस्ट हैव टेक्स्ट इन देम। बट इफ़ यू वांट, आप जेमिनाई या लार्ज लैंग्वेज कोई भी मॉडल हो, चैट जीपीटी, उसमें जाकर कह सकते हैं कि वो एक कोड जनरेट कर ले जो आप पेस्ट करेंगे अपने जीमेल के अंदर to have a more beautiful version of that email prepared, and as soon as you paste it you're going to see beautiful emails like this one. For example, this is an email we generated using Gemini.
which is a lot more pleasant to look at. It has buttons inbuilt. Again, imagination is the only limitation यहाँ पे. आप let's see, जैसे this is a resource pack I shared with a colleague. So आप देख सकते हैं कि इसके अंदर तमाम चीज़ें इनबिल्ट हैं. There's different colors involved. आप अपनी कोई एक ब्रांड आइडेंटिटी से बता सकते हैं. जैसे डॉक्टर नूरी किरण, यू रन एन ऑर्गेनाइजेशन डिकोडिंग एजुकेशन के नाम से, तो उसके लिए आप अपनी इस तरह की ईमेल्स बना सकती हैं. एंड देन दे विल हैव बटन्स इनबिल्ट एंड देन ऑल दी अटैचमेंट. सिंपली आपने जाकर अपनी गूगल जेमिनाई के अंदर प्रॉम्प्ट लिखना होगा. इट्स गोइंग टू गिव यू अ कोड. यू हैव टू सेव दैट कोड. मैं दिखा भी देता हूँ कि किस तरह से वो कोड को सेव करना है. एंड देन सिर्फ आप उसे पेस्ट करेंगे जब जाकर अपने जीमेल के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सारा टेक्स्ट भी अपीयर हो जाएगा, डिफरेंट बॉक्सेस, डिफरेंट कलर्स. तो इट्स गोइंग टू बी अ मोर स्टाइलाइज्ड वर्जन ऑफ इट. So I hope this tip will come in handy as well when you are, sending professional emails to somebody in the future. तो आपको वहाँ पे भी ये जो है वो काम आएगा. For example, the last time I sent out workshop certificates, तो you see कि मैंने सिर्फ Google के अंदर Gemini जाकर एक prompt लिखा and then it gave me a code जो कि मैंने जाकर सिर्फ Gmail में paste किया. तो customized emails to everyone, to all of my workshop participants with a button to download their certificates. Everything was ready made. तो द नेक्स्ट टाइम यूज़ और ट्राई टू सेंड एन ईमेल, तो थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करें, अपने स्किल्स को अपग्रेड करें. एंड देन ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कोडिंग इनटू एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर प्रोफेशनल वर्क, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ थिंग्स ईजियर फॉर यू एंड मोर रिफाइंड एंड मोर प्रोफेशनल फॉर यू. सो एंड मैं आप सब लोगों को हमारे एक एलमनाई ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा, जिसके अंदर हम इस तरह की अपडेट्स शेयर करते रहते हैं. हमारे जो एलमनाई हैं वो भी, इफ़ दे आर एक्सपेरिमेंटिंग विद एनी एस्पेक्ट ऑफ एआई, तो वो भी शेयर करते रहते हैं. तो वी ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर. With this, I would like to bring this workshop to a close. Dr. Rizwana, Dr. Shagufta, I think you joined late और आपने कहा था कि मैं एक दफ़ा steps दोबारा करवा दूँ, तो you can stay and the rest, I believe, if you want, you can leave, or if you want a recap, you can, watch the steps again. So we will not be discussing anything new further. हम सिर्फ डॉक्टर शुगुफ्ता के लिए एक पुरानी recap करेंगे और उसके बाद हम अपनी मीटिंग को close करेंगे. So thank you everyone for joining in. It was really pleasant having you all in the session. It was really nice sharing ideas with you all and exploring options for future collaboration. I hope this was useful for you and you learned something positive, and hoping to see you all in future workshops as well. Thank you so much, Dr. Noori Kiran. It's a pleasure having you always. ओके डॉक्टर रिजवाना, आपने यहाँ तक देखा था कि हमने अपनी एक गूगल शीट क्रिएट की थी. सॉरी डॉक्टर शगुफ्ता, आपने गूगल Yes. शीट क्रिएट करने तक देखा था? नहीं, but I know how to generate Google Sheet. अब आपने करना ही है कि सिंपली आपने सिर्फ एक नई गूगल शीट ओपन करनी है, ठीक है, और आपने उसके अंदर 3 कॉलम्स सिर्फ फिल करने हैं, ठीक है. नई शीट करनी है. यहाँ पे लिख लें फैकल्टी नेम, ठीक है, फैकल्टी ईमेल एंड देन डिपार्टमेंट. फॉलो अलोंग करें. जब ये हो जाए तो प्लीज मुझे बताएं, देन आई एम गोइंग टू टेल यू द फ्यू फर्दर स्टेप्स. थैंक यू डॉक्टर शिराज, थैंक यू सो मच. एंड एज प्रॉमिस्ड, अगर आपको कभी भी इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ट्रबल शूटिंग के लिए यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. जी डॉक्टर शगुफ्ता, आपने शीट बना ली, 3 कॉलम्स बना लिए उसके अंदर. Meanwhile, may I ask a question, Dr. Munir, please? जरूर मैम. अच्छा, मैं बेसिकली फैकल्टी में एपी हूँ और बीइंग अ ट्रेनिंग डायरेक्टर मैं सारी चीज़ों को देखती भी